Yeah, so I told you about the homework before, that if you want to make your English more awesome, you have to go through your homework. Okay, now I can see here most of the students, almost the students are present. Uh, that learning technique, and just going for the technique, I wanted to share with you. Just a minute, please. Okay, let's go for the next one. So I can see here all the students are present. By the way, this is what yesterday I taught you here. Simple past tense. We use simple past tense when something has done recently. And as you can see here, noun or pronoun plus verb second form. That's it. Someone broke window B. So you're going to take only the second form of verb. Broke, ate, did. For example, I wrote. So मैंने कल ही लिखा था ये. So when something is done recently, we can use their second form of verb. For example, I wrote some sentences over here yesterday. Next, he drank water. So drink will become drank. Next, she read a book. So read will become read. Next, it worked nicely. Work will become worked. It cried a lot. So cry will become cried. It flew very high. What? A bird. So fly will become flew. It won the match. What? Place India. Win will become won. It hurt. Hurt will become hurt only. All the three forms are the same of hurt. We can't say hurted. हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं hurted. Wrong. Hurted आता ही नहीं है. Cutted भी आता नहीं. What is the second form and third form of cut? Cut. Simple. Cut. It's cut only. We can't say cut cutted. बहुत सारे teachers को देखा मैंने. They are writing what? Cut cutted. Wrong. That's what? Cuts cut only, not cutted bitted. Next, you came to class. Now you people, you log into class just 10 minutes ago. So I can say that you come will become came. So you came to class. Next one, see will become saw. We saw a man. Next, they watched a movie. So watch will become watched. Okay. So they watched a movie. So this is what yesterday we have finished with our simple past tense. Any questions to anyone still? No, sir. Very simple. Now today I'm going to share with you here a technique of understanding, getting and studying the common concepts of English or any other language as well. Okay, so today is what 17 June 2021. Okay, so the learning technique today I'm going to share with you. Now I'll tell you one more thing. Suppose if I tell you about vocabulary, most of the people are suffering from this disease. What is that? Vocabulary. People don't speak English. Why? Because they are lacking vocabulary a lot. उन लोगों के पास में vocabulary है ही नहीं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम नहीं कर पाते अपने vocabulary के लिए, और वो वहां पर क्या करते हैं, सफर करते हैं. Now let me tell you one more thing. Suppose for example अगर मुझे कुछ बोलना है, इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा? ये this part. Pay attention. Pay attention. What is this part called? Bottom. Top. और इसको क्या बोलूंगा? ये बॉटल के ये पार्ट को क्या बोलूंगा मैं? बॉटल के ये पार्ट को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं इसको? Head. Head? No. What is this? बॉटल के ये पार्ट को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Top of the bottle. टॉप ऑफ द बॉटल के अंदर तो ये भी आता है. मैं ये पार्ट को बोल रहा हूँ, बॉटल के ये पार्ट को. दोस्तों खास जो है ना, कैप निकाल के साइड में रखा हूँ. What is this? उसको बोलते हैं बॉटल नेक. क्या बोलेंगे पार्ट को? Bottleneck. करेक्ट, इसको बोलेंगे बॉटल नेक. अब ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग को आगे से आगे सताने वाली है. अब इसको याद कैसे रखने का वो मैटर करता है. सेम केस आप लोग के घर में डोर रहेगा. डोर के अंदर मालूम है ऐसे घुमा के अपन लैच होती है, घुमाते, उसके अंदर चाबी भी लगाते, लॉक भी होता है, ऐसे घुमा के उसको खोलते अंदर. Yes sir. करेगा आप लोगों ने, राइट? Yes, sir. उसको Yes, क्या sir. बोलते हैं? वो लॉक को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको Latch. लैच तो बोलती है, और क्या बोलते हैं उसको? यस, और क्या बोलते हैं उसको? नॉब बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं उसको? नॉब. नॉब का मतलब क्या होता है? कैसे कैसे लोग यार, में सॉरी, नॉब, KNOB, नॉब बोलते हैं उसको. लैच के अलावा नॉब भी बोलते हैं. ऐसे इंग्लिश में एक नहीं बहुत सारे वर्ड्स हैं. नाउ लेट मी शेयर विद यू समथिंग हियर वेरी इंटरेस्टिंग. बेवड़ा रहता है, बेवड़ा, बेदौड़ा रहता है. बेवड़े को क्या बोलेंगे इंग्लिश में?
ड्रंकर, ड्रिंकर, करेक्ट, ड्रंकर मतलब नहीं बेवड़ा, राइट। बेवड़े को और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? बेवड़े को बेवड़ा बोलेंगे तो चलेगा क्या? करेक्ट, हमें आ रहे हैं पास में कुछ वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल लेगलेस, लेगलेस बेवड़े को हम लोग बोल सकते हैं लेगलेस। और इंटॉक्सिकेट पीपल, इंटॉक्सिक, इंटॉक्सिक, ओके वेरी गुड। एल्कोहलिक, एल्कोहलिक बोले तो बेवड़े, तो अगर एल्कोहलिक अगर बोलेंगे तो बेवड़े, तो है वाला वो बेवड़ा बोल रहा है मेरे को, पाड़ करके बजा दिया उसने वहीं पे। तो वहां पे हम लोग उसको ड्रंकर की जगह पे क्या बोलेंगे? लेगलेस की जगह पे, सॉरी ड्रंकर की जगह पे अपन उसको क्या बोलेंगे? तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ वोकैबुलरी किसको बोलते हैं। तो हम लोग वहां पर बोल सकते हैं उसको लेगलेस, इंटॉक्सिक, एल्कोहलिक। तो ये नॉर्मल वर्ड थे। लेगलेस इसके अंदर एक अच्छा हाई लेवल का वर्ड है। और इसकी जगह पे हम लोग बोल सकते हैं उसको टिप्सी और टिडली और अरे क्या हो गया, ओके हम लोग उसको बोल सकते हैं टिडली, टिप्सी। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको? फीलिंग नो पेन। नेक्स्ट वन हैप्पी। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हैं उसको? ही इज हैप्पी, ही इज फीलिंग नो पेन, ही इज टिप्सी, टिडली। सर हैप्पी कैसे बोल सकते हैं उसको? बताता हूँ ना। सो और बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी मुझे फिलहाल में इतने ध्यान में आ रहे हैं। सो ड्रंकर के लिए हमारे पास में इतने सारे वर्ड्स हैं। सेम केस, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मेच्योर हैं, कोई बच्चा पापा बीपा तो है नहीं, ओके। सो नेक्स्ट वन प्रेग्नेंट। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? डायरेक्टली बोलेंगे शी इज प्रेग्नेंट। ओ थोड़ा सा सुनने में भी जरा ऑड लग रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग प्रेग्नेंट वी कैन से शी इज एक्सपेक्टिंग, यस नो। और क्या बोल सकते हैं? शी इज हैप्पी और She is a state of happiness. correct, she is in the state of happiness, so she is happy. Next, waiting for the Tiny. tiny feet, very good। और और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास में एक चीज के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। सेम केस अब यहाँ पर मैं और यूज करने वाला हूँ दूसरी चीजें। इफ यू सी हियर गोइंग टू द टॉयलेट, टॉयलेट के लिए भी हमारे पास में अलग अलग वर्ड्स हैं इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग, करेक्ट। रेस्ट रूम बचपन से सुनते आ रहे हैं। नेक्स्ट वन पाउडर रूम, पाउडर रूम, करेक्ट। रेस्ट रूम, वॉशरूम। नेक्स्ट कन्वीनियंस, करेक्ट, कन्वीनियंस रूम। और Wash John. my hands. करेक्ट जॉन। नेक्स्ट वॉश माई Wash my हैंड्स, hands. वेरी गुड। और Receive the call of nature. पाउडर, पाउडर माई नोज, वेरी गुड। रिसीव द कॉल ऑफ नेचर। नेक्स्ट वन और आई वॉन्ट टू स्पेंड अ पेनी। मतलब नहीं क्या है कि एक टॉयलेट जाने के लिए कितने सारे वर्ड्स हैं हमारे पास में। आई गेटिंग द पॉइंट्स? फॉर एग्जांपल अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। इतना सब आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखना है, तो उसको यूज कैसे करेंगे, कैसे उसको बोलेंगे। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हियर सम ऑफ द ट्रिक्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम, इन योर स्टडीज, इन योर होल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक वर्ड है एनकरेज। हमेशा बताता हूँ मैं स्टूडेंट्स लोगों को। अब एनकरेज के अलावा हमारे पास में एनकरेज के ऐसा और दूसरा वर्ड कौन सा है? इसको बोलते हैं इंग्लिश के बेसिक रूल्स। बेसिक रूल नहीं मतलब है नहीं, ये इंग्लिश का बेसिक सीक्रेट है, दैट हाउ कुड यू स्पीक इंग्लिश सो फ्लुएंटली। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना सीरियसली मत बैठो रे, इतना सीरियसली मत बैठो, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। ओके सर आ सीरियसली रहा मत है बैठो सर। इतना भी, वेरी गुड। नहीं तो ऐसे बैठो एकदम ओ माय गॉड बहुत खतरनाक लेक्चर चालू है। आप लोग ऐसा मत बैठो, टीचर्स लोग ऐसे बैठे तो चलता है। आई हैव लेक्चर दिस सैटरडे, मे बी इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा यूट्यूब पर डालने का, यूट्यूब पर लाइव देने का। आई एम गोइंग टू ऑफर अ लेक्चर टू सीनियर कॉलेज टीचर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑन दिस सैटरडे। सो अगर आप लोगों को अगर कभी अगर रहा तो मैं आप लोग को लिंक दूंगा, आपके ग्रुप में डाल दूंगा। जो ग्रुप में मैंने आप लोगों को ऐड किया है वो ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके वेरी ब्यूटीफुल सेशन ऑन सैटरडे 12 नून। टीचर्स लोग को दे रहा हूँ मैं वहाँ पर। वो आबिदा इनामदार आजम कैंपस के टीचर्स पता है ना आप लोगों को, सीनियर कॉलेज Yes. उन लोग को देना है लेक्चर वो। सो दिस इज व्हाट मैं आप लोगों को कल भी पढ़ा चुका था और पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है
नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा छपरी हूँ, मेरे को तो इंग्लिश आएंगी नहीं यार, क्या बोलो यार, मैं तो बहुत बड़ा छपरी यार, मेरे को इंग्लिश नहीं आएंगे, मेरे को मालूम है मैं उर्दू मीडियम का है, ऐसे सोचने वाले लोग प्लीज अपने थिंकिंग चेंज कीजिए। I was also from Urdu medium, and see today is the time when I'm going to offer the lecture to the teachers. इसके पहले ये मेरा पहला लेक्चर नहीं टीचर्स को, इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे चुका हूँ। इवन मैंने टीचर्स लोगों को लेक्चर किसके ऊपर दिया मालूम है? इसके पहले पढ़ाते कैसे हैं उसके ऊपर। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू स्टडी करते कैसे, मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में। सो अब जैसे कि मेरे पास में एक वर्ड है एनकरेज, एनकरेज के अलावा और कौन से वर्ड है जो एनकरेज की जैसे हैं? मोटिवेट और इंस्पायर, इंस्पायर। वेरी गुड, यस मैम, बूस्ट, करेक्ट, वेरी गुड, बूस्ट। और क्या बोल सकते हैं? परसुएड, नेक्स्ट कोएक्स, नेक्स्ट करीना की बहन काजोल, मजाक कर रहा हूँ, Uplift. कजोल। ऑब्लिज एग्जैक्टली नहीं होता है उसका, ऑब्लिज एग्जैक्टली ऑब्लिज नहीं, अपलिफ्ट, हाँ, अपलिफ्ट इज करेक्ट, अपलिफ्ट इज अमेजिंग, गुड वन। Most. और इंस्पायर, मोटिवेट्स, cheer up, वेरी गुड, इन्फ्लुएंस, गुड मैम, चीयर अप, करेक्ट। हमारे पास में कितने सारे वर्ड्स आ गए? एनकरेज, मोटिवेट और कन्विंस, Induce. वेरी गुड, इंड्यूस भी बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल वर्ड। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये पहली बात तो पढ़ने का कहाँ से, सीखने का कहाँ से, मैं आज आप लोगों को उसका एक सीक्रेट आपके साथ में बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, आप बचपन से अपने को एक ही वर्ड आता था, एनकरेज 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 एनकरेज। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल के अंदर लिख रहे हैं, हम लोग एक ऐसे लिख रहे हैं। आप लोगों के साथ में बचपन में हुआ रहेगा, 1000 बार हुआ रहेगा। आप लोगों को कोई एक वर्ड के ऊपर, आप लोगों को किसी एक चीज के ऊपर आप लोगों को ऐसे लिखना है, और आप लोगों ने पूरे ऐसे के अंदर वही वर्ड रिपीट किया है, एनकरेज 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 एनकरेज। ये सनो, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। सो इफ यू सी हियर, आपके पास में खाली एक ही वर्ड है, आप उसको 50 बार रिपीट कर रहे हैं, अरे मजा आएगा क्या उसके अंदर? नहीं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सेम वर्ड, यू कैन यूज देयर डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम मीनिंग। उसको बोलते हैं थिसॉरस। डिक्शनरी यूज करते कैसे हैं आज मैं आपको बताता हूँ। आई सीइंग दिस? मेरे देखो डिक्शनरी मैंने ओपन किया तो कहाँ पे खुला है वो? थिसॉरस पे खुला है। मैं अक्सर थिसॉरस यूज करता हूँ। इफ यू सी देयर, मैं यहाँ पे एक बार टाइप करता हूँ एनकरेज। मैंने एनकरेज टाइप किया, ये एनकरेज का डिक्शनरी, ये मीनिंग है सिर्फ एनकरेज का। अब एनकरेज की जैसे और दूसरे कितने सारे वर्ड्स हैं मैं देख सकता हूँ जाकर मेरे थिसॉरस में। हार्ड कॉपी में भी मिलती है और ऐसे इसमें एप्लीकेशन के उसमें भी मिलती है। ये एप्पल की डिक्शनरी है, ये मेरी नहीं है, एप्पल की खुद की इनबिल्ट डिक्शनरी है ये। अब यहाँ पे एनकरेज के लिए देखो मेरे पास में कितने सारे वर्ड्स मुझे मिले। नाउ लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल इन वेरी इजी मैनर। मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ यहाँ पे कि हम लोग एनकरेज के लिए मैंने जो जो वर्ड्स लिखा हूँ देखो यहाँ पर, चीयर अप आया, अपलिफ्ट आया, इंस्पायर, मोटिवेट्स, नेक्स्ट वन, स्टिमुलेट भूल गया था मैं, इंटीमेट और कितने सारे वर्ड्स है देखो इसके लिए, कितने सारे वर्ड्स हैं इसके लिए। परसुएड, कोएक्स, अर्ज, वेरी गुड। मतलब ही नहीं, एक क्या था, एक वर्ड था मेरे पास में एनकरेज, उसके लिए मेरे पास में कितने सारे वर्ड्स हैं। बूस्ट, ये सुनो, तो मतलब एक एनकरेज के लिए कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश के अंदर हमारे पास में, हम उसको यूज कर सकते हैं। अब इतने सारे वर्ड्स को याद रखना बोले तो उसको याद करना रट्टा मारते थे अब तक। हेलो नाजमा, कल एग्जाम है ना आपला, कितना पढ़ी? अल्लाह, मेरे 2 चैप्टर अभी और बाकी, अम्मी बोले खाना पकाने के बाद मैं पढ़ूं, अब रात को पढ़ूंगी कल आऊंगी। तो यार, अबे नजमा को बोली एक काम करना। और फिर बॉयज लोग को तो बहुत भारी है, बॉयज लोगों का तो इतना जबरदस्त शॉट है, आई लव इट। अपना बॉयज लोगों का कितना भारी होता है, अपने इधर ऐसे होता है, हेलो जय, अरे सुनना यार, अरे यार वो क्या बोलूं यार, तेरी भाभी ने कल रात में कुछ छोड़ी नहीं, चैटिंग कर रहा था कल रात उससे, 2 चैप्टर मेरे हो गए, 4 चैप्टर तू पढ़ गया ना प्लीज, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में पढ़ गया था ऐसा, 4 तू पढ़ 2 तू पढ़। फिर टीचर क्या करती? हाँ, ओहो टीम वर्क, वाह वेरी नाइस। फिर टीम वर्क टीचर कैसे करती है, उठा के वो जय को बिठाया उधर, रज्जो को बिठाया इधर, अब दोनों के बेटे चीटिंग करो। अब हुआ ऐसा, ए सेट इसको मिला, सी सेट इसको मिला, जिसने इसने जो पढ़ के आया था वो इसको मिला, इसने जो पढ़ के आया था उसको मिला, और दोनों बराबर 34 पे तड़प तड़प के फेल हो गए। प्रॉब्लम क्या है, 100 मार्क्स की एग्जाम होती है, 40 भी नहीं ले पाते। हम लोग को ना डूब के मर जाना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ, मरो बिरो मत, ध्यान दो।
जीना कैसे। सो अब ये एक वर्ड के इतने सारे वर्ड्स हैं, इसको याद कैसे रखना है, तो मैं आज आप लोग को ये दिखाने वाला हूँ कि लर्निंग टेक्निक क्या होती है। सो देयर आर टू टेक्निक्स, ओके। एक तो जो थोड़े बड़े लोगों के लिए, लेजेंड्स के लिए जो कि सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, और एक दूसरी है जो कि पापा लोग के लिए, सबके लिए। टेक्निक नंबर 1 इज देयर, दैट इज व्हाट, अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। अब आप लोग बोले अरे मेडिटेशन सिखाएंगे, नहीं नहीं, बोर नहीं करने वाला हूँ मैं आप लोग को। अ काइंड ऑफ मेडिटेशन दैट विल हेल्प यू अलॉट टू रिमेंबर द वर्ड्स। कोई भी वर्ड्स को, कोई भी चीज को याद रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्या करना है, द टेक्निक, द मेडिटेशन इज ओनली फॉर मैक्सिमम 5 मिनट्स, ये टॉप लेवल पे जाने के बाद में, ओके। बिगनिंग में आप लोग स्टार्ट कर सकते हो उसको 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट यू कैन स्टार्ट, देन यू कैन गो अहेड विद स्मॉल स्टेप्स, ओके। पॉइंट नंबर 1 करना क्या है आप लोगों को, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 और 5 AM। सुबह में उठना है जब हर एक कुत्ता भी सोते रहता है, ये सुनो, गली का कुत्ता भी सोते रहता है वो टाइम पर आपको उठना Yes, है sir. जब पूरे घर वाले सोते रहते हैं, सन्नाटा। एंड क्या करने का, घर का कोना पकड़ने का एक, अब आप लोगों के घर में तो अलग अलग रूम्स होंगे ही, सेपरेट रूम्स होते हैं ना अपने घर में। सो कोना पकड़ने का अपने रूम का, लॉक मारने का। अगर समझो रूम इतने सारे नहीं है घर में, फिर भी क्या करना है, कोना पकड़ने का एक सुबड़ी में एकदम, क्या करना है, सिट, रिलैक्स, कूल, काम एंड कलेक्टेड, ओके। बी कूल, काम एंड कलेक्टेड, ये एक क्लीशे है, क्लीशे इंग्लिश के अंदर हम लोग बोलते हैं ना शांत हो, तो शांत के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं बी कूल काम एंड कलेक्टेड। अरे मैं तो बहुत कूल आराम में हूँ, मैं मतलब आई एम कूल काम एंड कलेक्टेड, ऐसे याद आते रहता है, मैं आपको बताते रहूंगा। नाउ सुबह में 4-5 बजे आप लोगों को उठना है, एंड देन एक कोना पकड़ना है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू डू ओनली वन थिंग, एंड दैट्स व्हाट, रिवाइज योर प्रीवियस डे, रिवाइज योर प्रीवियस डे। आपको करना क्या है, आपका जो पिछला दिन था, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, सुमड़ी में एकदम पहले तो आंखें बंद करके खुद के साथ में ऑनेस्ट रहना, हाँ, नहीं तो आप लोग ऐसे करेंगे, टेढ़े चाले नहीं करना। वहां पे आप लोगों को करना क्या है, जस्ट सिट, रिलैक्स, एक कोने में बैठना है आप लोगों को, क्लोज योर आईज, कूल काम एंड कलेक्टेड, एंड रिवाइज योर पास्ट। आपका पास्ट जो है, पास्ट मतलब नहीं वो गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी, उसके बाप ने मारा था, वो नहीं है। खाली पास्ट मतलब नहीं पिछला दिन, पास्ट में मतलब नहीं पिछला दिन जो रहेगा, आपको उसको रिवाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, एकदम इजी, कल मैं सुबह उठा था, नहाया था, कॉलेज गया, लेक्चर्स लिया, वहाँ पे दूसरे कॉलेज गया, वहाँ पे पढ़ाया, उसके बाद में घर आया, खाना खाया, स्टडी किया, शाम में आया घर पे, दूसरे घर पे से स्टडी करके फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मीटिंग हुई, खाना खाया, सो गया, ओके, फिनिश। 30 सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर फिनिश। मोटा 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 जो आप लोगों ने कल कल लास्ट प्रीवियस डे में किया था वो, इसको करने देना है आप लोगों को 1 वीक, जाने दो, डेली सेम ऐसे करना है 1 वीक तक के। जैसे आप लोग को थोड़ी प्रैक्टिस हो गई उसकी, आपको क्या करना है, थोड़े डीप में जाना है उसके। डीप में मतलब है नहीं, एक एक चीज़ को, मैं उठा था कल, उसके बाद में फिर मैंने शावर लिया, शावर के बाद में मैंने ब्रेकफास्ट किया था, हाँ मैं होटल गया था, वहाँ पे मैंने चाय पिया था, चाय पीने के बाद में मैं क्लास मैंने खोला था मेरा, क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर मैं दूसरे कॉलेज गया था पढ़ाने, कॉलेज में पढ़ाया स्टूडेंट्स लोगों को, फिर मैं मेरे घर पर आया, ब्रेकफास्ट भी किया मैंने, उसके बाद में मेरे फ्रेंड को मिला था, उसके बाद में मैंने बात किया, मीटिंग हुई, स्टडी किया, शाम में घर पर आया, पढ़ाई किया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, डिनर किया, उसके बाद में मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया क्लास का, स्टूडेंट्स लोगों को नोट्स वगैरह सेंड किया, मेल सेंड किया दूसरे लोगों को, फिर उसके बाद में मैं शाम में सो गया। थोड़े डिटेल में गए हम लोग, इसको 1 हफ्ते तक जाने देना है, और 1-2 हफ्ते सेम क्लास सेम जाने दो, तो आप लोगों का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ेगा। 30 सेकंड में आप लोग रिवाइज कर रहे थे, 1 मिनट हो जाएगा, 1.5 मिनट होगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई, मज़ा आ रही है, आप उसको और डीप में जा सकते हैं। अब आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग को टाइमिंग भी याद रहेगा। मैं सुबह में कितने बजे उठा था, यस मुझे याद है, अलार्म मेरा बजा था और मैं वहाँ पे उठा था 5:32 को। फिर क्या हुआ, एवोल्यूशन, वजू किया, नमाज पढ़ा, थोड़ा रेस्ट करके फिर मैंने क्या किया, एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करके फिर मैं शावर लिया, प्रिपेयर किया। कितने बजे प्रिपेयर किया, क्लास पे पहुंचा
8 को 3 कम पे मैंने क्लास खोला, स्टूडेंट्स आए, थोड़ा लेक्चर दिया, बराबर मैंने उन लोगों को 9:17 को छोड़ दिया, फिर ये हुआ, फिर मैं बराबर 10:30 को मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, 11:30 को मैंने लेक्चर फिनिश करने से पहले लाइट चली गई, इतने बजे लाइट गई, इतने बजे मैं वहाँ से निकला। आपको टाइमिंग भी याद रहेगा, टाइमिंग को रिकॉल करने का, मैंने कितने बजे मिला था उसको, कितने बजे मिला था। इसको 1-2 हफ्ते करो, और डीप में जाना है आप लोगों को, और डीप में जाएंगे आप लोग, और डीप में जाकर क्या करेंगे, पहले तो म्यूट करेंगे अपने आप को, फिर यहाँ पे सुनेंगे। चेबू बेटे म्यूट, गुड बॉय। उसके बाद में आप लोग और डीप में जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को मालूम है मैं कौन से स्टेज पे हूँ इसके, अभी मैं भी इसके वो वाले स्टेज पे हूँ कि मैं सुबह में कौन सी करवट पे उठा था ना, मेरे को वो भी याद होता है। आप लोग को लग रहा रहेगा क्या फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूँ, ओके, फेंक नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन से लेवल पे हूँ मैं, कितना डीप में जा सकता हूँ मैं। सो आपको एक लेवल वो आएगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि मैं कौन सी करवट पे उठा था कल। उसके बाद में मैंने कौन से हाथ से ब्रश लिया था, और ब्रश मुंह में जब मैंने डाला था तो पहले यहाँ लगाया था कि यहाँ लगाया था। एक एक चीज आपको याद रहेगी। इससे क्या होगा मालूम है, आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, और आपने कल के दिन क्या किया था, किसको क्या बोला था, एक एक बात याद रहेगी। कल मैं मेरे दोस्त को मिला था, मिलने के बाद में पहले उसको मैंने फटका दिया था कि सलाम किया था, वो भी याद रहेगा। गाली माँ की दिया था कि बहन की दिया था, वो भी याद रहेगा। तो आप लोगों को एक एक चीज आप लोगों को वहां पर याद रहेगी। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक ये टेक्निक है। तो इसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपने कोई भी चीज पढ़ा ना, फिर अब जैसे कि मैंने कुछ पढ़ा, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको पढ़ा, ये मैंने पढ़ा भी, ओके, पढ़ने के बाद में जब मैं मेरी हैबिट बन जाएगी ना रिकॉल करने की, तो मुझे ये कभी भूलूंगा ही नहीं मैं। तो मैंने अगर कोई एक चैप्टर भी अगर पढ़ा ना, तो मैं उसको भूलूंगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी मेरे पास में कुछ ऑफलाइन क्लास में पढ़ने वाले मेरे पास में स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शोएब, मिस सना, मिस सना, मिस्टर शोएब, क्या कभी आप लोगों ने मेरे पास में फाइल देखी, मैं कभी फाइल लेकर आया क्लास पर पढ़ाने के लिए आप लोग को? No, sir. मैं कभी फाइल लेकर जाता ही नहीं हूँ। क्यों पता है आपको क्यों? क्योंकि जो आपकी फाइल है ना पूरी, वो पूरी फाइल यहाँ बैठी हुई है मेरे पेज नंबर के साथ में। कौन सी चीज कहाँ है ना, मैं आंख बंद करके बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिवाइज किया, उतना रिकॉल किया मैंने उसको। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। इफ यू सी हियर, यहाँ पे आप लोग एक चीज को इतना मास्टर कर सकते हैं कि आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। वैसे कोई भी चीज अगर आपको किसी ने कुछ भी बोला था ना, कितने बजे बोला था, आपको याद रहेगा। ट्रिक नंबर 1, तो ये एक ट्रिक है। सेकंड ट्रिक क्या है, मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ लोगों का ऐसा मसला है, जैसे कि अभी हमारे जय है, रज्जो है, ओ सर सुबह में मेरे को कच कच होता है, ओ मैं नहीं उठ सकता सुबह को ऐसे लोग भी सर हैं एक हमारे पास क्वेश्चन में। है यस प्लीज आस्क। सर, इस लेवल तक पहुंचने पर तो काफी टाइम लगेगा। हाँ, तो उसके लिए तो उतनी मेहनत तो चाहिए बेटे दोस्त। सर वो तो है, बट अगर कुछ रिसेंटली कुछ याद करना रहा। ऐसा क्विक वाला मेरे पास में अलादीन का चिराग तो फिलहाल में नहीं, पर मैं उसके लिए आपको बता सकता हूँ। मैं एक चीज बता सकता हूँ कि किसी चीज को यस याद सर। कैसे करते हैं। तो ये एक चीज है, ये एक ट्रिक है। आप उसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप ये सीख अगर कभी गए तो जिंदगी में कभी भी आप कोई भी चीज को भूलेंगे नहीं फिर, ओके। ओके सर। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कल शादी करके आए, कौन है तू, मेरे को मालूम है इसने, अरे कल शादी हुई ना अपनी, हाँ क्या, मैं भूल गया तेरे को, सॉरी। ऐसे भी होता है हमारे इधर, तो आप ऐसा ना करें। सो बाय द वे, तो क्या चीज मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट। सो अब सेकंड ट्रिक हमारे पास में ये है, दैट्स अभी जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों को लगता है यार मैं कितना बड़ा बोर हूँ यार, मैं बहुत बड़ा छात्र यार, मेरे को कुछ नहीं आता यार। ऐसे भी हमारे क्लास में लोग हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग की बात कर रहा हूँ। तो हमारी क्लास में कुछ लोग ऐसे, मैं यार कुछ भी नहीं आता यार, मेरे को याद नहीं रहता है, कि नहीं कुछ लोग ऐसे? सम टाइम होता है सर सर। आप वो बता रहे थे ना 4-5 बजे उठने वाले। हाँ, तो क्या हुआ मैम, 4-5 बजे उठने का क्या? आप कुछ तो बोल रहे थे ना सर कि अगर 4-5 बजे उठना नहीं हुआ तो कुछ तो बोल रहे थे। हाँ वही बोल रहा था कि 4-5 बजे जिसका नहीं हुआ उठना, देखो मिस माइक कैसे इंटरेस्ट ले रही है इसके अंदर मेरे को, मैं सुबह में नहीं उठ सकती, पर पहले बोल रही देखो तुम्हारे को, क्योंकि देखो रात को मैं देखती सासवी बहू थी, उसके बाद में मैं सोती आराम से। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ कुछ चीजें जो कि है नंबर्स। मैं यहाँ पर लूंगा कुछ नंबर्स, वो नंबर्स के ऊपर हम लोग लेंगे कुछ वर्ड्स, और वो वर्ड्स के ऊपर हम लोग बनाएंगे कुछ स्टोरी, ओके। अब अगर आप लोगों का कभी मैं एग्जाम में अगर कभी बोला, आप लोगों को मालूम है ना स्कूल में क्या होता था, कॉलेज में क्या होता था, मैच द पेयर्स आपको आते थे, मालूम है ना? Yes. जोड़िया लावा, जोड़िया जुड़वा, मैच द पेयर्स। तो आप लोग वहां पे क्या करते थे, रमीज रमीज जय, अरे जो, दूसरा 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 तीसरा, अरे यार बोलना यार, इतने में टीचर बोलती थी गेट लॉस्ट, क्या यार तेरी वजह से। फिर वहां से अगर समझो रमीज ने बताया भी, दूसरे का पहला, पहले का चौथा,
चौथे का तीसरा। तो वहां पे उसने क्या करा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो आउट, पूरा उसका कुछ का कुछ लगा क्या है, रमीज यार थैंक यू यार, क्या बताया तूने। देख मैंने क्या लगाया, पहले का तीसरा, तीसरे का चौथा। अरे डे, मैंने पहले का चौथा बोला था, चौथे का दूसरा बोला था, गलती हो गई। क्यों? तो अगर आप लोगों को अगर कभी बोलूंगा कि पहले पे मैं नाम लिख रहा हूँ, पहले पे मैंने लिखा समझो ग्रीन, ओके, सेकंड पे मैंने लिखा ब्लू, थर्ड पे मैंने लिखा येलो, फोर्थ पे मैंने लिखा ब्लैक एंड फिफ्थ पे मैंने लिखा ग्रीन, सॉरी व्हाइट। अब आप लोगों को अगर मैं 1 महीने के बाद में अगर पूछूंगा ये थर्ड पे कौन था, कलरच था कौन था भी था, पर कलर था। आप लोग का आंसर ऐसा रहेगा, आप एग्जैक्टली नहीं बताएंगे कि थर्ड पे येलो था। बता पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता है, अगर मैं आपको 2 महीने के सर। बाद में पूछूंगा तो। नहीं सर। सेम केस अगर मैं बोलूंगा थर्ड पे रज्जो था, फर्स्ट पे रमीज था, सेकंड पे जय था, फोर्थ पे मिस महक थी, फिफ्थ पे मिस आयशा थी, अगर मैं आपको बोलूंगा थर्ड पे कौन था, क्या मालूम, थर्ड पे शायद सलमान खान था। सो आप लोग को वहाँ पे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यस है नो। तो अब मैं आप लोगों को आज कुछ बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा 5 नंबर्स, वो 5 नंबर्स के ऊपर हम लोग लेंगे 5 वर्ड्स, वो 5 वर्ड्स के ऊपर हम लोग बनाएंगे 5 स्टोरीज। अब मैं आप लोग को आज ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कितने महान हो। कैसे? कि आप लोग नंबर्स के साथ में वर्ड्स भी याद रखेंगे, वर्ड्स के साथ में स्टोरीज भी याद रखेंगे, और एक एक चीज आप लोग कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। मैं आपको ये बताने वाला हूँ आज। सो इफ यू सी हियर, वो क्या है कैसा है, जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसके लिए हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू क्लोज आवर आईज एंड वी हैव टू जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने 5 नंबर्स लिया हूँ, ये इसके ऊपर मैं 5 वर्ड्स लेने वाला हूँ, राइमिंग वर्ड्स, ताकि जल्दी से हम लोग को समझ में आए। वो राइमिंग वर्ड्स के ऊपर हम लोग स्टोरी बनाएंगे, ओके। और वो स्टोरी में अपने आप को आपको फील करना है, फील योर सेल्फ इन द स्टोरी। आपको अपने आप को वो स्टोरी के अंदर फील करना है। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स करूंगा, देखते हैं हमारा दिमाग कितना चलता है। ओके, क्लियर, Yes. डन, यस सर। गुड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अभी, इड़े चले बिना किए अपने आप को पहले म्यूट करेंगे एंड अच्छे से बिना चीटिंग किए वी आर गोइंग टू क्लोज आवर आईज, ओके। और यू हैव टू फील योरसेल्फ इन द स्टोरी। जो मैं स्टोरी बोल रहा हूँ अपने आप को स्टोरी के अंदर फील करना है आप लोगों को। फील योरसेल्फ इन द स्टोरी, ओके ओके, Okay. good. Now please all of you mute yourself and close your eyes. Don't cheat with yourself. Close your eyes completely. अब मैं यहाँ पर 5 नंबर्स लेने वाला हूँ, उसके ऊपर 5 वर्ड्स लूंगा और उसके ऊपर 5 स्टोरी बनाऊंगा। बाद में हम लोग देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ओके। एंड प्लीज जस्ट ट्राई टू गो इन द डेप्थ एंड ट्राई टू फील योरसेल्फ इन द स्टोरी। अपने आप को स्टोरी के अंदर फील कीजिए प्लीज, ओके, गुड। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट। अब कोई बीच में घुस के एड़े चाले करेगा नहीं, मैं मीटिंग ही लॉक कर दे रहा हूँ यहाँ से, कोई आएगा ही नहीं, ओके। सो आई एम क्लोजिंग माई आईज, ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आईज जेंटली। अपने आप को धोखा नहीं देना है एंड फील योर सेल्फ इन द स्टोरी। स्टोरी में अपने आप को फील कर रहा है आप लोगों को। सो आई एम टेकिंग नंबर 1। मैंने नंबर लिया 1। 1 के ऊपर मैं एक वर्ड ले रहा हूँ, फन। 1 फन, 1 फन, मैंने राइमिंग वर्ड लिया वहां पर 1 फन। फन मतलब है नहीं मजा, मजा, फन मजा। अब मैं फन के ऊपर एक स्टोरी बनाने वाला हूँ। सारसबाग है, सारसबाग है, संडे का दिन है, आप लोग सारसबाग गए अपनी फैमिली के साथ में और आपने वहाँ पे बलून खेला, फिश देखा वाटर के अंदर, फ्रेश एयर ली and you enjoyed there a lot and you had fun. I'm repeating the story once again. It's Sunday evening, Sunday evening, 5 o'clock. Sunday evening, 5 o'clock. You went to Sarasbag with your family. You played their balloon. You had their fresh air. You saw fish in the water. And you had a lot of enjoyment and had fun with your family. Sunday, 5 o'clock in the evening, you went to Sarasbag with your family. You played their balloon, had fresh air, saw fish in the water, and enjoyed a lot, and you had a lot of fun. Okay, 1 fun. Next, अब मैं नंबर दूसरा ले रहा हूँ 2। नंबर 2 के ऊपर मैं एक वर्ड ले रहा हूँ जू। 2 जू। जू मतलब है नहीं कातरे जू होता है ना, एनिमल लोग का जू होता है,
Good. It's Thursday. Thursday का दिन है. Evening 4 o'clock. Thursday का दिन है. Evening 4 o'clock. You went to Katres Zoo with your friends. You went to Katres Zoo on Thursday at 4 o'clock with your friends. And you saw there in the zoo leopard, cheetah, snake, tiger, lion, caterpillar, peacock. Okay, I'm repeating the story once again. On Thursday, 4 o'clock in the evening, you went to Katres Zoo with your friends and you saw their animals like cheetah, tiger, lion, leopard, snake, peacock, and there are many other animals too. Okay, next. 3. Number 3. 3 पे मैं ले रहा हूँ वर्ड ट्री, झाड़, दरख्त, पेड़, ट्री. मैंने 3 के ऊपर वर्ड लिया ट्री के ऊपर मैं स्टोरी बनाता हूँ. A mango tree is there. Okay, a mango tree is there. मैंगो का ट्री है. And there are many mangoes on the tree. There are many mangoes on the tree. और आपका दिल ऐसे ललचा रहा है. You are getting tempted by the mangoes. You're getting tempted by the mangoes. और आपका दिल चाह रहा है कि मैं मैंगो खाऊं. What you did, you climbed up the tree and you saw that there was a monkey and that monkey was having a banana. As you try to get the mango from the tree, that monkey slapped you and you fell down directly. एक मैंगो ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे मैंगोज हैं. वो मैंगो आपका दिल चाहा कि मैंगो खाऊं मैं. आप जैसे मैंगो ट्री पे चढ़े, आपने देखा उधर एक मंकी था. मंकी क्या कर रहा था? बनाना खा रहा था. और जैसे आपने वो मैंगो वहां से तोड़ने की कोशिश की, वो मंकी ने ऐसे फाड़ करके लाफा मारा कि आप लोग वहां से अल्टी पल्टी होके गिर गए. है क्या नहीं? गाड़ी की चाबी कहाँ है? तो आप लोग नीचे गिर गए वहां पर और आपकी हड्डी पसली एक हो गई और आप रोते भी लगते आप लोग घर पे चले गए. सो 3 ट्री. नेक्स्ट 4. नंबर 4. सर भाई गाड़ी की चाबी कहाँ है? श्योर. 4 श्योर. आप लोगों ने क्या किया? हमको चिल्ला रहा है. हाँ? श्योर. श्योर क्या होता है? समंदर का किनारे को हम लोग बोलेंगे श्योर. आई एम सो सॉरी. हाँ, आई एम सो सॉरी. सो 4 श्योर. समंदर का किनारे को हम लोग बोलेंगे श्योर. 4 श्योर. अब वहां पर क्या है? फ्राइडे का दिन है. फ्राइडे 2 o'clock फ्राइडे. अबू धाबी, दुबई, अबू धाबी. ओके, तो आप लोग अबू धाबी में. जस्ट अ मिनट प्लीज. गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, आपको चिल्ला
I'm extremely sorry. I'm starting again from 4. Okay, sorry. Please close your eyes once again. So 4. Number 4. For shore. मैंने वहां पे वर्ड लिया था shore. Shore मतलब यानी समुद्र का किनारा होता है ना, उसको हम लोग shore बोलेंगे, sea shore. So 4. It's Friday, 2 o'clock, 2 p.m. दोपहर के 2 बज रहे हैं. Friday, अबू धाबी, दुबई के पास में है अबू धाबी. अबू धाबी का बीच है, सी शोर है. You went there with your girlfriend or boyfriend. You had there, nice. You enjoyed there in the water. पानी में आप लोग ने enjoyment. You enjoyed there, nice. And suddenly you found that there was a crocodile. वहाँ पे अचानक में crocodile आया. आप लोग अपने चप्पल विप्पल छोड़ के भाग गए उधर से. So 4 shore, 2 o'clock, Friday, Abu Dhabi. You went there with your beloved one, and you enjoyed there in the water. And when you saw the crocodile, you ran away from there, and you left your footwear, flip flops. अपनी चप्पल विप्पल छोड़ के भाग गए. Next, 5. Number 5. 5. Hive. उसके ऊपर मैंने एक वर्ड लिया हूँ hive. 5. Hive. What do you mean by hive? Hive का मतलब होता है शहद का, मक्खी का छत्ता होता है ना, हनी कोम, उसको बोलेंगे हम लोग hive. हनी बी का hive होता है शहद का छत्ता. It is Saturday. Saturday का दिन है. Evening में you went to Azam campus. There is dental building. On the dental building there is what? Honeybee hive. आपने वहाँ पे देखा honeybee का hive है dental की building में. Evening, Saturday, आप लोग Azam campus गए. Campus was completely empty. पूरा खाली था. You saw the dental building. There was what? Honeybee hive. आपका दिल चाहा कि मैं हनी बी का हाइव खाऊं, मतलब हनी खाऊं वहां से, हनी बी के हाइव में से. आपने पत्थर लेके हनी बी के हाइव में मारा. पूरे जो हनी बीज थे आपके मुंह पे आके वो बैठ गए. आपके मुंह को काट काट के लाल पीला कर दिया उन लोगों ने. एंड लाइक दिस यू वेंट होम रोते रोते. सो 5 हाइव. ओके, नाउ द स्टोरी इज फिनिश्ड. प्लीज स्लोली ओपन योर आईज. Now all of you please unmute yourself. That's really nice. I'm so sorry. हाँ, थोड़ा सा मेरे छोटा वाला भाई है मेरा, थोड़ा सा एक्चुअली दिमाग में क्रैक है वो. So I'm so sorry for this one. किसी का माइक बहुत खतरनाक इरिटेट कर रहा है, मिस जैनब. ओके, सो नाउ मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को कुछ 5 नंबर्स दिया था, उसके ऊपर मैंने 5 वर्ड्स लिया था और वो 5 वर्ड्स के ऊपर मैंने 5 स्टोरीज बनाया था, राइट? यस सर. यस सर. 2 पे क्या था? जू. जू. करेक्ट. मैंने आप लोगों को नंबर पूछा, मैंने आपको नंबर पूछा, आपने मुझे वर्ड बोला. अच्छा, 5 पे क्या था? हाइव. करेक्ट. 5 पे था हाइव. फन कहाँ पे था इसमें? 1 नंबर. करेक्ट. अभी मैंने आप लोग को वर्ड पूछा, आप लोगों ने मुझे नंबर भी बोला उसका. और शोर कहाँ पे था? 4. 4 नंबर. करेक्ट. शोर था 4 पर. 3 पे क्या था? 3. करेक्ट. वेरी नाइस. मैंने आप लोगों को नंबर पूछा तो आपने मुझे वर्ड बताया, मैंने आपको वर्ड पूछा तो आपने मुझे नंबर बताया. मतलब दिमाग चल रहा है अपना. अब मैं आप लोगों को नंबर भी नहीं पूछूंगा, वर्ड भी नहीं पूछूंगा. मैं आप लोगों को स्टोरी के अंदर का एक छोटा सा कंटेंट पूछूंगा. देखते हैं हम लोगों को याद आता है कि कुछ. ओके, अगर आप लोग देखेंगे कि मैं आपको स्टोरी के अंदर का एक छोटा सा कंटेंट पूछूंगा, देखते हैं आप लोग को याद आता है क्या. स्टोरी में वाटर कहाँ कहाँ था? 5 पे 5 पे था और 1 पे. 4 पे था. एक्चुअली 4 नंबर. 4 नंबर. श्योर. हाँ, करेक्ट. 4 4 पे था. और कहाँ था? जू. और 1 नंबर फन पर था. सारा 1 नंबर. पे था. करेक्ट. 1 पर था. जू में नहीं था पानी. मैंने देखो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उधर मैंने बहुत सारी भारत ऐसी में चीजें था. डाला हूँ. मैंने उसके अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी डाला हूँ जो कि आप लोगों को आगे आगे चल के याद आएगी. मैंने 2 जगह पे वाटर डाला. फन में वाटर था, और वाटर में कौन सा, यहाँ पे एनिमल कौन सा था 1 में? फिश. करेक्ट. फिश. आप लोगों को मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हर एक नंबर के अंदर एनिमल्स डाला था. नंबर 4 पे कौन सा एनिमल था? क्रोकोडाइल. 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 क्रोकोडाइल था वहां पर.
हम कंफ्यूज नहीं होंगे सर। दैट्स रियली ग्रेट। नंबर 2 पे कौन सा एनिमल था? lion, करेक्ट। टू पे cheetah, मंकी था, मंकी। leopard, करेक्ट। लायन, एलिफेंट, चीता, लेपर्ड, लेपर्ड चीता था और peacock, करेक्ट स्नैक, पिकॉक, चीता था, स्नेक था, वेरी गुड, टाइगर था, कैटरपिलर, कैटरपिलर भी था, वेरी गुड। 3 पे कौन सा एनिमल था? मंकी, monkey, मंकी, करेक्ट विद मंकी था। बनाना, एंड नंबर 4 पे कौन सा था? honeybee, हनी, हनी कॉकरोच, बी थी वहां पर। मैंने आप बी, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पांचों के अंदर मैंने एनिमल्स डाला, पर आपने कभी ऐसे बोला कि हनी बी जो था ट्री पे थी और मंकी जो था वाटर में था? बोला आप लोगों ने? सर मतलब आप लोगों नो, का दिमाग चल रहा है। आई नहीं बोला। शपथ जय, अपना दिमाग चल रहा है यार। रज्जो, शोएब, अपना दिमाग चल रहा है यार। वाओ ब्यूटीफुल। ये अपन चपरे नहीं, अपना दिमाग चल रहा है। इसमें फ्राइडे कहाँ पे था? शॉर्ट, फ्राइडे में शोर पे, स्ट्रीट, four, राइट, शॉर्ट एग्जैक्टली, पे थे। वहां पे था फ्राइडे। आप लोगों ने यस, कंफ्यूज करने के लिए डेज भी डाला था उसने। इसमें सैटरडे कहाँ पे था? 5, करेक्ट, five, 5 में था। शॉर्ट पर थे हम। सैटरडे था, 5 में था सैटरडे। हाँ जी, 5 में जगह कौन सी थी? हाँ पैसा के बारे। अजम कैंपस, करेक्ट, इट Ajab वाज व्हाट? campus, वो डेंटल dental बिल्डिंग थी। building, करेक्ट, इट वाज व्हाट? कैंपस था वहां पर, आजम कैंपस था वहां पर। करेक्ट। यहाँ पे सैटरडे कहाँ था? हाइव पे था, बराबर। वहां पे सैटरडे आजम 5 पर कैंपस था। था। five, हाँ, इसमें थर्सडे कहाँ पे था? सेकंड पे, थर्सडे सेकंड, सेकंड सेकंड, था। zoo करेक्ट, में, करेक्ट, जू में था वहां पे थर्सडे। नाइस, आप लोग को तो यार याद है। जू में था थर्सडे वहां पर। करेक्ट। फ्राइडे शोर पे था, सैटरडे हनीबी के हाइव पे था, थर्सडे यहाँ था। फन में कौन सा डे था? संडे, 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 करेक्ट, Sunday, संडे था। संडे था, संडे। करेक्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, इसमें बनाना कहाँ पे था? ट्री, करेक्ट, ट्री मंकी पे, के हाथ में था, ट्री, tree, ट्री पे मंकी, था। ट्री पर। मैंने 2 monkey, फ्रूट दिया था, कौन कौन से था? बनाना मैंगो, है, मैंगो, mango, मैंगो एंड banana, बनाना, मैंगो एंड बनाना। करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम लोग इसमें चप्पल कहाँ पे आई थी सब स्टोरीज के बीच में? कौन सी स्टोरी में चप्पल आई जो थी? शोर पर four पे, चले भाग के four आया। यहाँ पे, पे आया था 4 पे आया था फ्लिप 4 फ्लॉप। नंबर, 4 नंबर। देखो आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ना नंबर पूछा, ना वर्ड पूछा, मैंने ना स्टोरी पूछा, आपको स्टोरी के अंदर का एक छोटा सा कंटेंट पूछा, आप लोगों ने उसमें भी गलती नहीं किया। मैंने आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डेज अलग अलग डाला। करेक्ट, आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या किया, वहां पे टाइमिंग अलग अलग डाला। 2 बजे कहाँ थे आप लोग? 2 बजे हम उधर थे, शोर पर थे। शोर पे, करेक्ट, एग्जैक्टली, आप लोग 2 बजे शोर पर थे। आप लोग 2 PM को आप लोग शोर पर थे। संडे, यहाँ पे जब अपन संडे के दिन यहाँ गए थे, सारसबाग में गए थे, राइट? 5 एक बजे, दिन अपन सारसबाग में गए थे, कितने बजे गए इवनिंग थे? टाइम, 5 इवनिंग बजे, टाइम पर 5 गए थे। o'clock, पहले इवनिंग 5 बजे, 5 5 बजे गए o'clock, थे आप लोग, 5 बजे गए थे। जू में कितने बजे गए थे हम लोग थर्सडे के? 4 4 बजे, o'clock, 4 बजे गए थे, 4 o'clock गए थे। 4 बजे, 4 o'clock PM। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ट्री पे कितने बजे गए थे हम लोग? टाइमिंग नहीं था, ट्री का टाइमिंग नहीं टाइम बताया, नहीं करेक्ट, टाइमिंग था ही नहीं ट्री उधर। का टाइमिंग नहीं बताया। करेक्ट। अच्छा, हाँ, यहाँ पे टाइमिंग नहीं था। कैंपस कितने बजे गए थे हम लोग? इस पे भी नहीं 5 था, बजे गए थे, इसमें भी एक्चुअली मैंने यहाँ इवनिंग, पर भी इवनिंग, टाइम, इसका भी टाइमिंग नहीं था। करेक्ट, टाइम इसका भी नहीं यहाँ था, पर टाइमिंग नहीं था। यहाँ पे खाली मैंने बोला था इवनिंग में गए थे हम लोग यहाँ पर, मैंने वो नहीं शाम को बोला गए था। थे, हाँ। करेक्ट। दूसरी बात, अब हम लोग आगे चलते हैं। छोटी सी बात आपको पूछूंगा और मैं, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, आप लोग ने अपने आप को जख्मी कहाँ कहाँ पे किया था? इंजर्ड कहाँ पे हुए थे आप लोग? ट्री पे शोर पर किया और इधर इधर और किया, शोर पे, हाई पे किया, हाई पे किया, पहली बात हाई तो पे आप किया, लोगों ने, जू पे 3 नंबर ट्री पर किया, हाइव पे ट्री किया, 3 3, नंबर, 4 एंड 5, क्यों? क्योंकि ट्री पे कैसे किया 3, था? 4 और 5। स्लैप किया मंकी था ने आपको, स्लैप मंकी दिया, ने। हमने अल्टी पल्टे मार के हाँ, गिर गए। स्लैप किया करेक्ट, मंकी ने, करेक्ट। नंबर 5 के अंदर क्या हुआ था हाइव में? हनी बी ने और काटा, मधुमक्खी हनी ने बी वोट ने से काटा, काट दिया। हनी बी ने काटा था आपको, बाइट किया था। और कहाँ पे लगा था? बाकी आप और लोग 4 पे, और मक्खी शोर पे आपको यहाँ पे मारा था किसी ने? शोर पे नहीं मारा नहीं, हम चप्पल फेंक के भाग गए थे। यस, नहीं, करेक्ट, हम भाग गए थे, हाँ, हम भाग भाग गए गए थे, चप्पल छोड़ के। एग्जैक्टली, चप्पल छोड़ के भाग गए थे, वहां पे मारा नहीं था किसी ने भी आप लोगों को। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, इसके अंदर बलून कहाँ पे था? 1 पे, बोलो सर, बलून गार्डन में संडे, सारस बाग में सारसबाग, 5 बजे, बलून था आप लोगों का संडे। सारस बाग में संडे के दिन 5 बजे। ओके, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात,
दूसरी बात, इसके अंदर फिर हम लोग फ्रेंड्स के साथ में कहाँ गए थे? जू जू सेकंड। करेक्ट, जू में गए थे हम लोग फ्रेंड्स के साथ में। जू पे गए Correct. 2 नंबर, जू जू Correct. फ्रेंड के साथ में। रज्जो गर्लफ्रेंड के साथ में कहाँ पे गए थे? शोर 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 पर गई थी। राइट, गर्लफ्रेंड के साथ में वहाँ गए थे हम लोग शोर पे, राइट? ओके, यहाँ पे सरसरोवर में किसके साथ गए थे हम लोग? फैमिली। फैमिली के साथ गए थे हम लोग। करेक्ट, राइट, फैमिली के साथ में गए थे। मतलब मैं आप लोगों को मैंने कंफ्यूज करने के लिए रिलेशंस भी डाला उसके अंदर, टाइमिंग्स भी डाला उसके अंदर, डेज भी डाला उसके अंदर, एनिमल्स भी डाला उसके अंदर, और कुछ कुछ चीजों में सिमिलर चीजें भी डाला मैंने, जैसे कि आप लोगों ने मार खाया था 2 जगह पे, और 2 जगह पे पानी भी डाला मैंने उसके अंदर। आप लोगों ने एक जगह पर भी कंफ्यूजन नहीं डाला है, एक जगह पर भी आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए। कुछ लोग हुए थे बीच में, पर अक्सर लोगों का जवाब एकदम करेक्ट था। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मालूम पड़ती है, दैट यस यू आर रियली वेरी टैलेंटेड एंड यस यू हैव द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर द थिंग्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर किया क्या मैंने आप लोगों को देखा है, मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक एक वर्ड लिया था, वो वर्ड को मैंने क्या किया था, यहाँ पर वर्ड को क्या किया था मैंने, उसके ऊपर स्टोरी बनाया था। वो वर्ड के ऊपर मैंने क्या किया था, स्टोरी बनाया था, और वो स्टोरी के ऊपर आप लोगों को एक एक चीज अभी तक याद है, यस नो? तो ये जो चीज था मैंने आप लोगों को यहाँ पर Yes, दिया। sir. क्या आप लोगों ने इसके पहले इसको कभी लिखा था, कभी पढ़ा था, नहीं और फिर मैंने ऐसे डिलीट मारा था? नहीं। अब अगर आप लोग को अगर ये 1 महीने के बाद भी अगर पूछूंगा, 2 हफ्ते के बाद में भी पूछूंगा, एटलीस्ट आप लोग मुझे इसका 50% आंसर देंगे, गारंटेड दूंगा। यस सर। यस। अब एक बात आप लोग को मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्या आप लोगों ने इसको लिखा? नो क्या आप लोगों ने इसको पढ़ा? नहीं नो क्या आप लोगों ने इसको नहीं। रट्टा मारा, नो मगिंग किया? नहीं। नहीं सर। पर फिर भी आपके नहीं। दिमाग में इतना सारी चीजें बैठी कैसे, आई कैसे गया, आपने करेक्ट आंसर दिया कैसे? बिकॉज सर ध्यान लगा के सुना था। करेक्ट, यू वर लिसनिंग इट प्रॉपर्ली एंड यू आर फीलिंग योरसेल्फ इन इट। इमेजिन किया था। इमेजिन किया था। इमेजिनेशन सबसे कड़क पावर होती है, इतनी जबरदस्त पावर होती है इमेजिनेशन की, दैट यू कैन डू एनीथिंग देयर। आप कुछ भी कर सकते हो इमेजिनेशन के अंदर। आप इमेजिन कर रहे हैं, यू डायरेक्टली गेट इट। अगर कोई चीज को आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, आप वैसे बनते हो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, वो वीडियो को कभी सुनना। जिसने वो वीडियो को सुना और जिसने वो वीडियो को सुनने के बाद में अपनी लाइफ को चेंज किया, वो बंदा जीत गया, समझो। इट इज द टिप ऑफ सक्सेस। आप लोग के साथ में वो वीडियो शेयर करूंगा मैं, वो वीडियो के जरिए जाना आप लोग। समझ में आ रहा है? आप लोग देख Yes, रहे हैं मेरे sir. हाथ में फोन, ये मेरा Yes, फोन sir. है, यस सर। यस दिस इज आईफोन 11। आपको पता है ये फोन से पहले मेरे पास में आईफोन 6 था, और मैं उसको 3-4 साल से यूज कर रहा था फोन को। ये मैंने अभी लिया, एक आई थिंक 6 मंथ्स हुए मुझे फोन लेकर ही। इसके पहले मेरे पास में वो फोन था। एंड डू यू नो वन मोर थिंग, ये फोन लेने का मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं आपके साथ में मेरा सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, सोचा भी नहीं था। सर आवाज स्लो, आवाज एकदम कम आ रही है। मे बी नेटवर्क का इश्यू रहेगा, मे बी। आपको पता है वॉल्यूम 2 वॉल्यूम हफ्ते कम आ तक के, 2 हफ्ते तक आपको पता है, 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक के मैं कंप्यूटर में फोन सर्च करता था बैठकर, आधा घंटा। सॉरी टू से दिस, आधा घंटा मैं फोन सर्च करता था। मैक्सिमम मेरा बजट था 25,000 मेरा मैक्सिमम बजट था। पर मेरा जो दिल था ना, वो मेरा दिल बोल ही नहीं रहा था कि एंड्रॉइड फोन लो, सैमसंग लो, ओप्पो लो, वीवो लो, रियलमी मैं नहीं यार। दिल बोलता था लो, पर नहीं। दिल बोलता था नहीं, अपन एप्पल यूज करते, वही लेंगे, वही लेना है। आपको पता है ऐसा होते 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 फिर मुझे वो वीडियो भी मिला, फिर मैंने उसको सुना, समझा, वापस से लॉकडाउन के अंदर की बात है वो टाइम पर। सो व्हाट हैपेंड, मेरा दिल बोला नहीं यार, अपन कर सकते हैं इसको। आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड आई स्टार्टेड गट्स फीलिंग थी मेरी कि मैं इसको यूज करता हूँ। मैं इसको फील कर रहा था विद मी, मैं ये फोन को फील कर रहा था। एंड लिटरली आई प्रेड एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एंड वर्किंग ऑन इट। आपको पता है कुछ ही हफ्तों के अंदर मैंने ये खरीद लिया फोन। एंड वो टाइम पर इसका प्राइस था 73,000। कहाँ तो मैं 20,000 का फोन ले रहा था, देन आई बॉट द फोन ऑफ 73,000 रुपीज। ये हुआ कैसे मालूम आप लोग को? हमारे यहाँ पे लाइफ में देखो, आप लोगों को ऐसे कचरा लोग भी मिलेंगे, ओ बाप रो इतना महंगा फोन, अरे बाप रो इतना महंगा, अल्लाह बाप, अटैक आके मरने वाले काम करते।
सर वॉइस चली गई फिर से। नहीं, लाइट गई है एक्चुअली, हमारे यहाँ पे भी गई है। ध्यान निरंकार जी, ध्यान निरंकार। Hello, are you able to listen to me? Yes, sir. Yeah, I'm so Yes, sorry sir. actually. यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क पावर फेलियर हुआ है मेरे यहाँ पर. ओके, सो जस्ट लिसन टू मी. सो यहाँ पे पावर फेलियर हुआ है तो आप लोग सिर्फ सुन सकते हैं, मुझे थोड़ा सुन लीजिए. सो आपको पता है तो ये मैंने किया कैसे? आई स्टार्टेड फीलिंग इट. मैंने उसको फील किया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. मैंने उसके ऊपर काम किया 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 एंड आई गॉट द फोन. और ऐसे ही ये नहीं, इसके अलावा मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं. तो आप लोग अगर कोई चीज को इमेजिन करते हो, सोचते हो पॉजिटिवली और उसके ऊपर काम करना है, खाली सोचना नहीं है. बोले मैं खाली सोच रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, ऐसा नहीं. सो आप लोग कोई काम करते हो उसके ऊपर, यू डेफिनेटली गेट इट. आपको चीज मिली जाती है. कितना भी कुछ भी करो, स्टार्ट फीलिंग इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आपको वो चीज मिल जाएगी. मैंने अभी कल के परसों मैंने एक कोट पढ़ा था एक जगह पर, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने एक कोट पढ़ा था, दैट whatever you want, if you don't get after it, if you don't go after it, you will never get it. जो भी चीज आपको चाहिए उसके पीछे जाओ, और अगर आप लोग उसके पीछे नहीं गए तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया ना. सो ट्राइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ टू गेट समथिंग. सो आप लोग को मैं सिर्फ बता ये रहा था कि ये सब हुआ कैसे. सेम केस इसके पहले मेरे पास में लेनोवो का लैपटॉप था. वो लैपटॉप को मैंने 5 साल यूज किया. ब्यूटीफुल लैपटॉप था मेरा. उसके बाद में मेरा लैपटॉप वो खराब हो गया. खराब होने के बाद में मैं लैपटॉप ढूंढ रहा था. आई स्टार्टेड फीलिंग इट. विच वन? मैकबुक, एप्पल का. मेरा बजट जो था ना वो टाइम पे मैक्सिमम 35,000 था. उसके बाद में मैंने जो लैपटॉप लिया, मैंने 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप लिया. फिर कैसे लिया? आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. कभी भी एक बात याद रखो, लाइफ में रोना मत कभी भी. कितना भी कुछ भी आए ना, रोना मत. जहाँ पे आप लोगों ने रोना स्टार्ट किया ना, और सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं और पैसे के लिए रोते हैं. जहाँ पे आपने सोचा पैसा खत्म, ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू द थिंग्स रादर देन वैल्यूइंग मनी. जब आप लोग थिंग्स को वैल्यू करते हैं ना, मनी आपके पीछे झक मार के आती है, भाग कर आएगी आपके पीछे, याद रखना. और जहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू मनी को दिया, क्वालिटी चली जाएगी और मनी भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि भाई मनी कैसे आता है? क्वालिटी के पीछे आता है कभी भी. ये सुनो, आप लोगों ने कभी देखा है क्या नाइकी वाला रो रहा है, एप्पल वाला रो रहा है? कभी देखा है एडिडास वाला रो रहा है, BMW वाला रो रहा है? कभी देखा है आप लोगों ने? नो. आपको पता है एप्पल कंपनी हैज देयर बैंक बैलेंस मोर देन they can buy Reliance company 10 times. इतना पैसा है एप्पल कंपनी के पास में कि रिलायंस कंपनी 10 बार खरीद सकते हैं वो लोग. रिलायंस इंडस्ट्री. इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मालदार आदमी कौन है? सबसे रिचेस्ट मैन? अंबानी का पूरा इंडस्ट्री एप्पल वाला 10 टाइम खरीद सकता है. मतलब अंबानी के ऐसे 10 लोगों को खरीद सकता है एप्पल वाला, इतना पैसा उसके पास में. आज अगर आप लोग देखेंगे इतना पैसा आया कैसे? बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग दैट क्वालिटी which none of the other phones, none of the other gadgets are providing. Yes or no? आज वर्ल्ड का टॉप क्लास लैपटॉप एप्पल, वर्ल्ड का टॉप क्लास फोन एप्पल, वर्ल्ड का टॉप क्लास एयरपोर्ट्स एप्पल. क्यों? क्वालिटी जहाँ रहेगी वहां पे आपको चीजें मिलेंगी. सो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आप लोग को सिर्फ एक चीज पढ़ाया है आज यहाँ पर, कि आपको कोई भी चीज को याद कैसे करना है, कैसे याद रखना है. जहाँ पे आप लोग ये सीख गए, मतलब आप लोगों को आ गया, समझो. आप लोग कभी कोई चीज को भूलेंगे नहीं. तो इसको आप लोग को करना क्या है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी डिटेल में. इंग्लिश आप लोग को कैसे पढ़नी है, ये तो मैंने आपको जनरली पढ़ाया कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, एग्जाम्पल देके. अब आप लोगों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों को वोकैबुलरी कैसे याद रखना है. ओके, अब फॉर एग्जाम्पल वोकैबुलरी कैसे याद रखना है मैं आपको वो बताने वाला हूँ. लिसन टू मी केयरफुली.
अब जैसे कि मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, वो टेक्निक से मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी चीज को याद कैसे रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, बारबेरियन। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब क्या होता है? जंगली। ओके, बारबेरियन मीन्स व्हाट? जंगली। कौन सा वाला जंगली? खूंखार हैवान टाइप जंगली होता है ना, दरिंदा, बीस्ट। तो अगर आप लोग देखेंगे बारबेरियन, एकदम खतरनाक आदमी रहता है ना, जंगली, उसको हम लोग बोलेंगे बारबेरियन। अगर आप लोगों को ये वर्ड को अगर याद रखना है हमेशा के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे वहां पर कि उसको रिलेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, नंबर को रिलेट किया वर्ड से, वर्ड को रिलेट किया स्टोरी से। स्टोरी स्टोरी से। से। करेक्ट। तो आप लोगों को एक एक वर्ड याद था। हाँ बाबा, ट्री के ऊपर कौन था? बराबर, फिश थी ट्री पे, बराबर ना? नो, नो, क्या था मंकी। फिर? मंकी। मंकी था, मंकी। मंकी था ट्री के ऊपर। करेक्ट। और वो ट्री के ऊपर मंकी था, मंकी के हाथ में क्या था? बनाना। 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 आपको एक चीज याद है। सेम केस बारबेरियन का मतलब क्या होता है? जंगली। अब हिस्ट्री क्या बोलती है? वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर सबसे खतरनाक, सबसे बारबेरियन जंगली आदमी जो था, इट वाज व्हाट? चंगेज खान। चंगेज खान वाज द बारबेरियन मैन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक जंगली आदमी था चंगेज खान। सर आवाज नहीं आ रही। तो बारबेरियन जो था, हेलो हेलो, आ रही है हमको। आ रही है सर। आ रही है सर। मिस्टर पवार, शायद आपका इंटरनेट वीक है, मे बी। सो बारबेरियन का मतलब होता है जंगली। पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर सबसे खतरनाक जंगली आदमी जो था, वो था चंगेज खान, ऐसा हिस्ट्री में बताया गया है। ओके। सो अगर आप लोग देखेंगे इंग्लिश में, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चंगेज के खान के बारे में हिस्ट्री में यूज किया गया है वर्ड बारबेरियन। तो आप लोग कभी भी अगर जब कोई बारबेरियन नाम आता है ना, आपको याद आएगी चंगेज खान का, आपको चंगेज खान की याद आएगी उधर। आप बोलेंगे ओ माय गॉड, बारबेरियन मतलब चंगेज खान। तो मतलब चंगेज खान के नाम से आप लोग ने एक वर्ड सीख लिया इंग्लिश में, और वो क्या है? बारबेरियन। बारबेरियन। आप लोग को अगर नेक्स्ट टाइम अगर किसी को ये वर्ड बोलने का रहा, तो आप लोग को याद रहेगा, चंगेज खान बोले तो बारबेरियन। नेम फॉर एग्जाम्पल क्रूअल। क्रूअल का मतलब क्या होता है? दुष्ट, जालिम। करेक्ट। दुष्ट, जालिम को हम लोग बोलते हैं क्रूअल। अब जो वर्ड है क्रूअल, क्रूअल जो वर्ड है, तो ये हिस्ट्री के अंदर यूज किया गया है एडोल्फ हिटलर के लिए। हिटलर के लिए हम लोग यूज किया गया है ये वर्ड क्रूअल। तो आप लोग को जब कोई भी वर्ड यूज याद आएगा क्रूअल, तो उन लोगों ने वर्ड क्रूअल को किससे रिलेट किया? हिटलर। करेक्ट, हिटलर से। तो आप लोग को कभी भी अगर याद करने का रहेगा क्रूअल वर्ड, तो आपको हिटलर की याद आएगी, हिटलर की याद आएगी तो क्रूअल वर्ड याद आएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो आपको दो वर्ड्स याद हो गए। कैसा? क्योंकि आप लोगों ने उसको किसी ना किसी नाम के साथ में रिलेट कर दिया है। सेम केस अभी अगर आप लोग देखेंगे, अब मेरे पास में कुछ वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टिंजी, माइजर, रिजिड। इंग्लिश के 3 वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने रखे। क्या आप लोगों को ये वर्ड्स के मीनिंग पता है? माइजर मीन्स कंजूस। वेरी गुड। सख्त, rigid means सख्त। रिजिड मीन्स सख्त। शक, शक मतलब? स्टिंजी मतलब कंजूस ना? करेक्ट। यस रमीज, व्हाट इज शक? सख्त मतलब सख्त सख्त। लौंडा। हाँ 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 हाँ, सख्त लौंडा। रिजिड मतलब टफ। सर रिजिड ओके, मतलब टफ। करेक्ट करेक्ट, वही सख्त लौंडा बोले ना अभी इन्होंने। तो इफ यू सी हियर, रिजिड का दूसरा मीनिंग क्या है इंग्लिश में? चिंदी। मतलब एकदम घट रहता ना, एकदम सख्त, वो वाला, चिंदी। अब यहाँ पर स्टिंजी मतलब यानी कंजूस, माइजर कंजूस, और ये रिजिड चिंदी, कंजूस वाला। अब अपने को याद रखना है तीनों वर्ड्स को, तीनों का मतलब थोड़ा थोड़ा सेम है। अब स्टिंजी मतलब यानी कंजूस होता है, माइजर उससे बड़ा कंजूस होता है, और रिजिड मतलब बहुत बड़ा चिंदी रहता है वो। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये वर्ड्स को अगर आप लोग को याद करना है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं आपके दोस्त लोग के नाम से। अब आपके फ्रेंड सर्कल में एक आधा रहेगा, स्टिंजी बोले तो इरफान, अरे बहुत बड़ा है यार, बहुत कंजूस है यार। माइजर, माइजर बोले तो रफीक, वो उससे बड़ा कंजूस है। और गणेश, अरे बाप रे, वो तो बहुत बड़ा चिंदी है। तो आप लोग क्या करेंगे, इनके नाम से याद रखेंगे। गणेश बोले तो, अब जब कभी आप लोग को गणेश दिखेगा ना आता हुआ, आप लोग क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड रिजिड। आप लोग को ये वर्ड याद रहेगा। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो Yes. आपको क्या करना है, खाली रिलेट करना है। अब आप बोलेंगे यार एक एक वर्ड को मैं कहाँ तक रिलेट करूंगा, नहीं, आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, हर एक वर्ड को रिलेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ वर्ड्स जो कि टफ हो सकते हैं आपके लिए, उनको रिलेट कर सकते हैं, उनको आप लोग रिलेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये मेरा बहुत पुराना सिस्टम है।
नाउ आई टेल यू वन मोर थिंग, मैं जब क्लास 12 में था, वो टाइम पे मेरे लिए सबसे खतरनाक सब्जेक्ट जो था, मैंने क्या किया पता है आप लोग को, मैं 4 घाट का पानी पी कर आया हूँ यार। मेरी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। मैंने जब क्लास 10 पास किया, सो आई वेंट फॉर कॉमर्स। पहले मैंने किया कॉमर्स 2 साल कॉमर्स करके फिर मैंने क्या किया, डिप्लोमा किया 10th के बेसिस पे। उसके बाद में फिर मैंने किया इंजीनियरिंग, वो मैंने साइंस से किया। वो करने के बाद में मेरे घर वालों का हो गया सपना पूरा इंजीनियरिंग का। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, आर्ट्स किया, जो कि मेरा सपना था। तो मैंने आर्ट्स भी पढ़ा है, कॉमर्स भी पढ़ा है, साइंस भी पढ़ा है। तो जब मैं क्लास 12 में कॉमर्स में था, 12th में कॉमर्स में था, तो मेरा सबसे खतरनाक, सबसे हेटफुल जो मेरा सब्जेक्ट था ना, हेटेड सब्जेक्ट, वो था इकोनॉमिक्स। मेरे को बिल्कुल नहीं आता था वो इकोनॉमिक्स, मेरे को नहीं आता था। तो अब इकोनॉमिक्स मेरे को नहीं आता था, तो मैंने क्या किया वहाँ पर, उसको मैंने ऐसी स्टडी किया उसको। क्यों? क्योंकि प्रीलिम एग्जाम, वो सेमेस्टर की एग्जाम होती है, मालूम आप लोग को? सेमेस्टर Yes. एग्जाम होती है। Yes. तो सेमेस्टर एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स में मैं फेल हो गया था। सी, कोई अपना सीक्रेट आपको ऐसे ओपनली बोलेगा नहीं, पर मैं डरता नहीं हूँ। क्यों भाई? बिकॉज माई फेलियर वॉज माई सक्सेस, क्योंकि मेरा वहीं से सक्सेस स्टार्ट हुआ था। तो मैं इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, मैं तभी वो टाइम पर फेल हो गया मैं। कौन सा सेमेस्टर एग्जाम के अंदर। अब मैं बोला ओ माई गॉड, मैंने घर पे बोला ही नहीं, क्योंकि फाइनल एग्जाम तो था नहीं। मतलब अभी करना तो करना क्या है, अपन बहुत बेकार फेल हो गए इसके अंदर। मेरे को कुछ तो 7-8 मार्क्स ही मिले थे उसके अंदर। मैंने क्या किया, उसको इमेजिन करना स्टार्ट किया, और ये वो ट्रिक थी, ये मैंने ट्रिक वापस से उसके ऊपर यूज करना स्टार्ट किया। एंड व्हाट हैपेंड, वो टाइम पे मैं, मेरे भाई के मोबाइल की शॉप है, तो उसका मैं मोबाइल का काम करता था मार्केट जाकर। तो वो ज़माने में, वो टाइम पर मार्केट के अंदर, मार्केट का एक बादशाह था। तो मुझे एक कंसेप्ट पढ़ना था इकोनॉमिक्स का, मोनोपोली। अब यहाँ पे जितने भी कॉमर्स वाले सबको मालूम रहेगा, मोनोपोली का मतलब क्या है। मोनो मतलब यानी सिंगल, और पोली का मतलब क्या होता है, सेलर। करेक्ट बोल रहा हूँ ना मैं? Yes, sir. मिस सुप्रिया, मिस सना, मिस्टर Geo शोएब, is monopoly. Geo has रजा। created monopoly. करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो वो टाइम पे क्या था कि वो टाइम पे एक्चुअली, वो टाइम पे जियो वगैरह नहीं आया था, तो नया था। अब मेरे लिए ये जो मोनोपोली, अभी इसके ऊपर एक नोट थी 10 मार्क्स की, वो टाइम पर 10 मार्क्स की एक नोट थी मोनोपोली के ऊपर। और उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वगैरह बहुत सारे एडे चले थे वो इकोनॉमिक्स में। अब मैं बोला अपने को इकोनॉमिक्स पास करना है, तो मैं वहाँ पे मार्केट में जाता था मेरे भाई के काम से। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, मार्केट के अंदर एक शॉप वाला था, गीता सेल्स बोलकर। वो टाइम पे वो मार्केट का राजा था, ही वॉज द किंग इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अकेला अकेला था, ही वॉज अ सिंगल सेलर, इन द मार्केट। और सब उसके पास में बहुत सारे मल्टीपल बायर्स थे, बहुत सारे थे उसके पास में, मल्टीपल बायर्स थे उसके पास में। अब मैटर क्या हुआ मालूम है आप लोगों को? मैंने उसको, गीता सेल्स को क्या बोला, मेरे दिमाग में फिट कर लिया एज अ मोनोपोली। मैं बोला यस, ये किंग है, अकेला है, सिंगल सेलर है, एंड ही हैज मल्टीपल बायर्स। मोनोपोली उसको ही बोलते हैं जहाँ पे सिंगल सेलर रहेगा और मल्टीपल बायर्स रहेंगे। उसके ऊपर से मैंने गीता सेल्स को क्या करना किया वहाँ पर, मोनोपोली। अब जो जो मेरे कंसेप्ट मेरे दिमाग में था, मैंने उसको एक बार पढ़ा और मैंने उधर लिख दिया उसको। लाइक दिस इट वेंट लॉन्ग लॉन्ग, और मैंने ऐसा करके फाइनल के अंदर आई स्कोर देयर 64 मार्क्स। मैं आप लोग को ही नहीं बोलूंगा मेरे को 99.99 मिले थे, क्योंकि आप लोग मेरे को लाल बत्ती गाड़ी देने वाले क्या? नो, मेरे को मालूम है जो रियलिटी मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आई स्कोर देयर इन इकोनॉमिक्स, फाइनल में मुझे 64 मार्क्स मिले उसके अंदर, जहाँ पे मेरे को 34 भी मिल नहीं रहे थे। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हाउ कैन यू स्टडी। आपको पता है आज का खेल ऐसा है, मैं लास्ट टाइम शरीफ कब हुआ था मालूम है आपको? फर्स्ट ईयर में, जिसको आप लोग बोलते हैं FY। क्या हुआ मेरे साथ मालूम आप लोगों को? मेरे साथ हुआ ऐसा कि कॉलेज वालों ने मेरे साथ में अन्याय किया भाई। क्या किया मेरे साथ में? अन्याय किया उन लोगों ने। कैसे? पहले तो मेरे को दिया असाइनमेंट, मेरे को बोले लिख के लेके आओ। मैंने असाइनमेंट क्या किया फर्स्ट ईयर में, रात के 2 बजे तक के बैठ के मैंने असाइनमेंट लिखा। रमेश भाई, रात के 2 बजे बैठ के मैंने असाइनमेंट लिखा। उसके बाद में जब मैं कॉलेज में गया नेक्स्ट डे, असाइनमेंट सबमिट किया, तो मेरे को क्या दिया मालूम उन लोगों ने? दे गेव मी ओनली 5 मार्क्स। दिल तोड़ डाले मेरा। मतलब यार, यार 2 बजे तक बैठ के लिख रहा था मैं। तुम्हारे चारों भाभी बेचारे मेरे को बोले बात करो, तो मैंने उन लोग से बात नहीं करा। उन्होंने नहीं, मेरे को लिखना है। 5 मार्क्स मिले मेरे को। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ था नहीं है। पर ये था कि मैंने 2 बजे तक बैठ के लिखा था। अगले दिन मेरा दिल तोड़ डाले उन लोगों ने 5 मार्क्स देके। मतलब तुम्हारी माँ की कसम,
आज के बाद मैं कभी असाइनमेंट लिखूंगा नहीं। इसके लिए मैं मेरे स्टूडेंट्स को कभी लिखने का काम नहीं देता हूँ। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ उसको आप बहस करो, 10 बार लिख के लेके आओ, दिस इज 10 बार दैट इज, 20 बार ये। आज तक मैंने कभी आप लोग को लिखने का काम दिया? नो। देता ही नहीं हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, लिखेंगे नहीं। क्योंकि भाई मैं खुद नहीं लिखता था ना। आई गेटिंग द पॉइंट? लिखने का नहीं, मैं क्या मानता हूँ, लिखने का नहीं, ये भरने का। अभी तक क्या अपन ने क्या भरे? खाली नोटबुक भरे, HW BW TW CW ये डब्ल्यू LW वे डब्ल्यू। अपने टीचर आते थे, बेटा CW नहीं लाए, LW नहीं लाए। बाल भारती पढ़ा पढ़ा के बैल भारती बना दिया अपने को। ये सुनो, मैं बिलीव करता हूँ ये भरने के अंदर दिमाग। बुक्स तो भरते रहते हैं हर दिन को, हर 4 दिन को आती नीलोफर, वाबा 200 पेज की बुक दिलाना, वाबा 200 पेज की बुक दिलाना। अरे क्या है ये? अगे घेमड़ी बुक खारी के लिख रही। वहां पे समझ में नहीं आ रहा है, लफड़ा ही हो गया ना। अबे आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल बॉय। वो मैं आपके लिए तारे तोड़ के लाऊंगा ना। तो मैं राज हूँ ना मैं किसी सिमरन को एंटरटेन करता हूँ। मेरे को वो ख्वाबों की दुनिया जो है ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। आई गेटिंग द पॉइंट्स? बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। सो मुझे 5 मार्क्स दिए उन लोगों ने, उसके बाद में मैंने कभी असाइनमेंट लिखा नहीं। अब जब मेरा चल रहा था मास्टर्स, जब मेरा मास्टर्स चल रहा था इंग्लिश में, एट द टाइम व्हाट हैपेंड, कॉलेज वाले क्या बोले मेरे को कि हम लोग इंटरनल्स नहीं लेते, हम लोग लेते इंटरनल्स की जगह पे असाइनमेंट। मैं बोला ओ माय गॉड, मैंने अभी क्या करना? तो मैंने क्या किया मालूम है? अब वो इंटरनल्स नहीं देंगे तो उन लोग क्या करते हैं, मार्क्स जाते हैं यूनिवर्सिटी को। व्हाट आई डिड, मैं आपके सामने आज ये सब क्यों बोल रहा हूँ? आप लोग बोल रहे होंगे यार एक टीचर है कि क्या क्या बात कर रहा है। रियलिटी बोल रहा हूँ मैं, और मैं रियलिटी बोलने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि वो जो रियलिटी आपको जानना भी चाहिए। मैंने जो फर्स्ट ईयर के बाद में जो मैं शरीफ बना, मैंने उसके बाद में कभी असाइनमेंट लिखा ही नहीं। मैंने क्या किया मास्टर्स के अंदर, मेरी बहन को दिया मैंने इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट से पूरे निकाला, उठा के मैंने खाली कॉपी पेस्ट मेरी बहन के व्हाट्सएप पे किया। उसको बोला ये असाइनमेंट लिख के तैयार रख, कल मेरे को सबमिट करना है। वो बेचारी ने असाइनमेंट लिखी, मैंने आके सबमिट किया। आफ्टर सर सबमिशन 4 दिन के बाद में जब मैं वो रिकलेक्ट करने के लिए वापस कॉलेज गया, तो वहाँ पे टीचर मेरे को क्या बोलते मालूम है? ओ माय गॉड योर असाइनमेंट्स आर वेरी रिलेवेंट, अमेजिंग। बोला अरे बहुत मेहनत से लिखा था। अरे एड़े लोग, मेरे को ये भी मालूम नहीं मैंने लिखा क्या है। नाउ आई विल टेल यू द सिंपल थिंग इज व्हाट अपने कॉलेज के अंदर जो चल रहा है, क्या चल रहा है वो, कि टीचर्स लोग को ये पता ही नहीं कि बंदा कितना पढ़ा हुआ है कितना नहीं। वो खाली बुक्स के मार्क्स के ऊपर आप लोग को जज करते हैं। दैट्स आई हेट द मोस्ट। मैं आज तक कभी मार्क्स के पीछे, परसेंटेज के पीछे भागा ही नहीं मैं। सिंपल, एंड हियर आई एम टुडे इज द given me the greatest opportunity that I'm going to deliver a lecture to the professors, doctors, and the great legends of the college, toppers आने वाले। So this is what exactly the thing is what, ये भरो, books मत भरो। इसलिए मैं आपको इंग्लिश भी वही नेचुरल तरीके से पढ़ाता हूँ। That if you are committing a mistake, I'm going to correct you over here. So have practically, make sentences practically, speak practically, and learn practically. So how was my concept? मुंह पे बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुंह पे बोलो, अच्छा लगा अच्छा, अच्छा नहीं लगा अमेजिंग सर, बेकार वेरी है। नाइस, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट। सो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा ए गच्चू बैठो हाथ की घड़ी मुंह पे छोड़ो, मैं वाला टीचर है। आप लोग अगर कभी मुझे अगर रियल लाइफ में अगर कभी देखेंगे ना फेस टू फेस, मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ। वाई? मुझे लोग बोलते हैं वो टक्सीडो पहनो, वो फॉर्मल्स पहन के आने का, वो मैं करता ही नहीं हूँ। वाई? वो अंकल विंकल बन के घूमना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। पहली बात तो अंकल हूँ भी नहीं मैं, आई एम जस्ट 25। So enjoy your life. Are you getting the points? Enjoy your life and make it practical. Getting it? So अब enjoy का मतलब रजा ये नहीं है अभी ओ मम्मी आज सर ने बोले enjoy your life, जय ले बॉटल बिटल लेके I'm enjoying my life. It's my life. ऐसा कुछ नहीं। Getting it? Enjoy life gently. All right? So this is what there are 2 tricks of learning. ये 2 ट्रिक्स हैं, आप लोग इसके अंदर से कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं स्पेशली ये फर्स्ट वाली पे जाता हूँ। क्यों? सेकंड वाली भी मैं करते रहता हूँ तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। फर्स्ट वाला मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सुबह में 4-5 बजे उठ जाता हूँ, मैक्सिमम 6 o'clock सुबह में। मेरे को आई लव मॉर्निंग टाइम, सो दिस इज व्हाट बेस्ट एकदम। ओके, एंड सेकंड वाला भी बहुत अच्छा है, आप लोग रिलेट करा सकते हैं। अभी आप लोग देखा रहेगा, अभी आप लोग ये अक्सर चीजें करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अपना एक दोस्त है हनीफ, बहुत बड़ा फुकट है, तो आपने उसका नाम क्या रखा? हनीफ फुकट। तो आप लोग कभी ऐसे फुकट याद आए तो ओ हनीफ भाई, ऐसे डायरेक्ट क्लिक होता है, ये सुनो हनीफ भाई फुकट, तो ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। गेटिंग इट? सो आप लोग कोई भी चीज को अगर आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग ऐसे रिलेट करके उसको याद रख सकते हैं।
Is that clear? Yes, So sir. these Yes, are sir. my secrets Yes, of sir. learning. और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पर आप लोग यकीन करो या मत करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Today is the time. अगर आप लोग देखेंगे, आज मेरा डिग्री भी आया है. If you see here, आ गया हो? Yeah. मेरा भी आया है सेम Same, right? मास्टर्स का. Correct. So अगर आप लोग देखेंगे, आज मेरा डिग्री आया है. आपको पता है, मास्टर्स के 2 साल के अंदर मैं कॉलेज कितने दिन गया हूँगा? 4 दिन गया मैं टोटल. I went there only for 4 days. And I passed my masters with 81%. क्यों? क्योंकि इंग्लिश का था ना वो. Okay? Second thing is okay. what? Second thing is what? मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ. उसके अंदर जो मैंने स्टडी किया है ना, आप लोग अगर मेरे बुक्स देखेंगे तो आप लोग देखने में शॉक हो जाएंगे. मैडम आज आई नहीं है, वरना आपको मैडम डायरेक्ट लाइव बुक्स दिखाती थी. मैंने मैडम को दे दिया. मेरी असिस्टेंट है मैडम, आती है देखो कभी कभी क्लास में. वो मैंने मेरी बुक्स पूरी उठाकर मैडम को दिया. आप लोग देखेंगे मेरे बुक्स जो है ना, बिल्कुल एकदम कोरे नए हैं. क्यों मालूम है? क्योंकि मैं 1 रात पहले पढ़ता हूँ उसको खाली. 1 नाइट बिफोर द एग्जाम. उसमें भी कैसा मालूम? ओनली वंस मैं उसको खाली एक बार पढ़ता हूँ, छोड़ देता हूँ. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का खास करम है अपने ऊपर. मोर देन 60%, मोर देन 70% आई कैन राइट आफ्टर रीडिंग वंस. ये हुआ कैसे मालूम आप लोग को? मेरे पास में कोई ऐसे छू कलम अंतर का ऐसा जादू विदू का ये कुछ नहीं है. बोलो कौन सा तावीज पहनते? तावीज नाड़े बेड़े तो पहनता ही नहीं मैं, ना मैं बिलीव करता हूँ. मेरे पास में ये वाली ट्रिक है. ट्रिक नंबर 420. गेटिंग इट? एनी डाउट्स? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो. यस सर. तो ये Yes, वाला sir. तावीज मैंने आप लोग को आज दिया है. जाके इसको गले में बांधो. इंग्लिश आप लोग को आ जाएगा. ओके? एनी डाउट्स? No, sir. No, Sir, sir. one thing, sir, excuse me, sir. या प्लीज बोलिए ना. आपने बोला ना गिव इम्पोर्टेंस थिंग रादर देन मनी, वो समझा नहीं. जरा 1-2 मिनट में विस्तार से बताएंगे क्या प्लीज? चलो मैं आप लोग को उसका एक एग्जांपल देता हूँ. लाइव एग्जांपल, एकदम कड़क वाला एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू द थिंग्स रादर देन मनी. क्योंकि देखो आज हम लोग हैं, कल इस जिंदगी दुनिया में रहेंगे कि नहीं रहेंगे बोल नहीं सकते. अगर समझो सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज रात में ऊपर चले गया गॉड के पास, ये जो फोन मैंने अभी खरीदा, क्या ये फोन मेरा रहेगा? ना ये चार्जर मेरा रहेगा, ना ये मेरा फोन रहेगा, ये ना टी शर्ट मेरे साथ में जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा. ये सुनो. तो इंसान की जो लाइफ है ना, लाइफ इज ओनली फॉर 4 days. मैंने आज भी मेरे क्लास में बोला, लाइफ इज ओनली फॉर 4 days. कौन कौन से भाई? मंडे, Monday, Tuesday, ट्यूसडे, Tuesday, Wednesday, 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 एंड Thursday. थर्सडे. Thursday. करेक्ट. क्यों भाई? क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है जग बुड़ी है, मतलब है नहीं पूरी दुनिया खत्म होने वाली फ्राइडे के दिन. Friday फ्राइडे को, जुम्मा है. हाँ जुम्मा, जो कि कल है. और सैटरडे संडे तो वीक ऑफ होता है ना अपना. So life is only for यमराज जी छुट्टी जाते हैं. correct. Life is only for 4 days. इसके लिए कभी भी मनी को वैल्यू नहीं देने का, थिंग्स को वैल्यू देने का. मैं आप लोग को एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ मेरे अंकल का. आई हैव एन अंकल. मेरे एक अंकल है. वो अंकल ने क्या किया, बहुत बड़ा चिंदी आदमी है वो. ही इज अ वेरी बिग रिजिड, सॉरी टू से दिस. तो अंकल ने क्या किया, अंकल को सस्ती चीजें बहुत ज्यादा पसंद है. अब सस्ती का मतलब क्या है? अंकल बोलते कई को इतने पैसे खर्चा करने का. मैं वो नहीं बोलता हूँ पैसे खर्चे करने का, मैं ये बोलता हूँ कि अच्छी चीज लो, अच्छा यूज करो. अंकल ने क्या किया, एक बार अंकल लेकर आए फुटवेयर 300 रुपीज के. बोले अंसार ये देख मैंने चप्पल लेकर आया हूँ, देख ऐसे कहते 2 in 1 है. बूट भी है, चप्पल भी है. ओह माय गॉड, लव इट. मैं बोला क्या बात है, वाओ. मैं बोला कहाँ से लिया? बोले स्वारगेट से लिया मैंने. बोला अच्छी बात है. मैं बोला अरे पर ये नकली है, ये रास्ते का माल सस्ते में जो है ना वो है. ये आपका पैर के अंदर नुकसान विकसान पहुंचा सकता है. आपने 300 का लिया. मिस सुप्रिया डेंजर हो रहा है आपका माइक. सो मैंने बोला अभी आपने रास्ते का माल सस्ते में लिया ये, पर ये नुकसान पहुंचा सकता है आपको. बोले 2 in 1 है, सैंडल भी है बूट भी है, सैंडल भी है बूट भी है, सैंडल भी बूट भी है. हा कैसा मजा आ रहा है. बोला हाँ ना. तो बाबा ने क्या किया मालूम है, 8-10 दिन 15 दिन पहना. मालूम है चप्पल काटती है पैर में, देखा रहेगा आप लोगों ने कभी. Yes. हाँ कभी काटी कि नहीं चप्पल? नकली Yes, sir. काटी ना. तो क्या हुआ मालूम है अंकल का, अंकल के नेल्स में काट लिया वो चप्पल ने. कौन से वाले? टो के. जो ये टो होता है ना, बिग टो, अपना पैर का जो अंगूठा होता है बड़ा वाला, उसके अंदर अंकल के टोज के अंदर वो चप्पल ने काट लिया. और ऐसा खतरनाक काटा
कि अंकल उसको पहनते ही बैठे थे और वापस बोले मैंने अभी 300 रुपये का लाया, मैं कैसे फेंकूंगा, चिंदी थे ना, उसको काटा फिर भी वो पहन रहे थे। आपको मालूम है क्या हुआ? ऐसा टाइम आया 1-1.5 महीने के बाद में कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब नहीं गंदगी वगैरह भर गई थी, उनको सर्जरी करना पड़ा। सर्जरी जो है नॉर्मल है, उन लोगों ने एक सादे हॉस्पिटल में सर्जरी की, 13,500 रुपये गए उनके वहाँ पर, और उन दोनों भी नेल्स निकालने पड़े उनको। किसकी वजह से मालूम है? फुटवेयर कैसे? वो 300 रुपये की चप्पल के लिए। वो 300 रुपये की क्वालिटी चप्पल, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब दिमाग बोलते हैं इसको, दिमाग बोलते हैं, ध्यान देना प्लीज। अब 300 रुपये का चप्पल लिया, कितने दिन चलता है वो? महीना, 2 महीना, 3 महीना चलेगा, ये सुनो, कितना दिन चलता है 300 रुपये वाला यस रास्ते का सर, चप्पल? 3-4 महीने 3-4 महीने चलता है। चलो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से यूज किया आप लोगों ने, 4 मंथ्स पकड़ लेता हूँ, करेक्ट। आफ्टर 4 मंथ्स आप लोगों ने फिर वापस से 300 रुपये का खरीदा, करेक्ट। फिर आपने और 4 मंथ्स के बाद में 300 रुपये का खरीदा, मतलब यानी 1 साल के अंदर आप लोगों ने कितने का खरीदा टोटल? 1200 रुपये का। ये सुनो, 1 साल में आप लोगों ने यस 3 बार, 1 साल में आप लोगों ने 3 बार खरीदा 1200 रुपये की चप्पल। वही चप्पल अगर आप लोग अच्छे कोई ब्रांडेड शोरूम से लेते थे, अच्छी वाली चप्पल 1000 रुपये की आती विथ वारंटी। आप लोग जाएंगे ना, स्पार्क कंपनी की आती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, नाम नहीं लूंगा मैं, तो 1000 रुपीज़ का आता है, वारंटी भी आता है उसका। वो चप्पल 1000 रुपये वाला आपको मालूम है मिनिमम 2 इयर्स चलता है, ये सुनो। यस। एक तो पहली बात तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जो लोग चिंदी रहते हैं ना, मनी के पीछे भागते हैं, उन लोग का लफड़ा क्या है मालूम है? उन लोग बोलते हैं यार 300 रुपये मजे, क्या मजा है, टाटा। अरे येड़े, 300 रुपये की चप्पल लेगा, पैर तो पैर में काटे के इतना बड़ा खर्चा हो सकता है, नहीं हुआ तो बार बार 300 रुपये की चप्पल लेगा, ना क्वालिटी मिलेगी ना कुछ। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा रज्जो है, वो 300 रुपये वाली चप्पल पहन के गए वलीमे में, वहां पे जाके चप्पल टूट गई, अब वहां पे कैसे जा रहे हैं सबके सामने ए नीचे नंबर देख रहे, चुप रहे ए चप्पल टूटी मेरी। तो वहां पे क्या हुआ, सबके सामने चप्पल टूट गई, पोपट भी हो गया, ना क्वालिटी मिली ना कुछ मिली, पैसा ज्यादा गया। एक्चुअली जो ब्रांडेड चीज होती है बहुत सस्ती होती है। सी 1000 रुपीज में 2 इयर्स चला, मतलब 1 ईयर का कितना हुआ? इसका 1 ईयर का 1200 रुपये लगता है, जो कि लोकल है, लोकल चप्पल का 1 ईयर में लगता है 1200 रुपये, ओके। और जो ब्रांडेड चप्पल है 1 ईयर में कितना लग रहा है उसका? ओनली 500। ये से नो, अगर वो 2 इयर्स भी अगर चला तो 1 ईयर का कितना बैठा? 500 बैठा क्या नहीं? एक्चुअली ब्रांडेड चीज सस्ती रहती है क्योंकि वो ज्यादा चलती है, आपको ब्रांडेड चीज मिलती है, क्वालिटी मिलती है, फील मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये से नो। सेम केस अभी इसके पहले ये मेरे साथ में हुआ है करके मेरे को एक बार चटका लगा है, दूसरी बार चटके वाले काम करता नहीं हूँ। I'll tell you one more thing, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा है, 2 मिनट और बात करूंगा फिर अपन जाएंगे। If you नहीं see सर चलेगा, अच्छा है। मैं मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, जो कि रियली वेरी वैल्यूएबल है, आप लोग को आगे काम में आएगा। वंस आई बॉट सैमसंग ग्रैंड प्राइम मोबाइल, मैंने एक बार खरीदा, पहले मैं बहुत सैमसंग यूज़ करता था, तो मैंने वो फ़ोन लिया, इट वॉज व्हाट अराउंड 17,500 का मैंने फ़ोन लिया था, वो न्यू पेटी पैक फ़ोन लिया। आपको मालूम क्या हुआ फ़ोन के साथ में? आफ्टर 11 डेज वो हो गया हैंग, दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उसको मारा फॉर्मेट। उसके बाद में 13 डे पे भी वो हो गया वापस से क्या, हैंग। मैंने उसको फिर से फॉर्मेट मारा और एक बार मैंने कसम खाया उसको, मैं बोला अभी अभी देखो ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। उसके बाद में क्या हुआ, डायरेक्टली वो 18 आई थिंक 18वें डे को, ये मुझे डेज कैसे याद है, अभी आप लोगों को मैंने ट्रिक बताया ना, वो ट्रिक की वजह याद है मुझे आज भी। 18वें दिन को फिर से वापस क्या हो गया, वो हैंग हो गया। मैंने उस दिन क्या करा, मैं बोला आज मैं देखो बेच के आऊंगा, आज मैं देखो लास्ट टाइम फॉर्मेट मार रहा हूँ। मैंने फ़ोन को लास्ट टाइम फॉर्मेट मारा और वही दिन मैंने फ़ोन को बेच कर आया, जस्ट विद इन 14,000। मैंने वो फ़ोन को 18 दिन के बाद में ही 14,000 में बेच दिया फ़ोन को, 3,500 का लॉस खा के। मैंने बोला आज के बाद कभी ज़िंदगी में सैमसंग यूज़ नहीं करूँगा। वाई? हैंग होता है, क्योंकि आज मेरे सामने हैंग हो रहा है, कल के दिन मैं 4 लोगों के बीच में मीटिंग में जाऊँगा, वहाँ पे हैंग हुआ तो, परसों के दिन तुम्हारी भाभी से बात कर रहा हूँ, हैंग हो गया तो हेलो हेलो हेलो, लफड़े हो जाएंगे ना। तरसों के दिन अगर समझो चाचा की मैयत हो गई, फ़ोन ही नहीं चल रहा है, अरे हेलो हेलो फ़ोन ही नहीं चल रहा है, अरे चाचा मर गए, अपना फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद में मैंने सैमसंग जो छोड़ा ना, मैंने कभी हाथ नहीं डाला फिर सैमसंग में। उसके बाद में फिर मैंने जो फ़ोन लिया ना, आई स्टार्टेड यूजिंग एप्पल, मुझे कभी धोखा नहीं दिया एप्पल ने। आई बॉट माई फ़ोन, उसके बाद फिर मैंने जो लिया था ना, मैंने लिया था 29,000 का मेरा iPhone 6। आपको मालूम है 4 इयर्स चला वो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेन। अब उसको मेरा छोटा वाला भाई यूज़ कर रहा है, अभी भी चल रहा है वो टका टक।
अभी मैंने ये वाला फ़ोन लिया, तो वहाँ पे ब्रांडेड जो था वो एक्चुअली सस्ता पड़ा। ये चला मेरे पास 18 दिन 17,500 का, ये 29,000 का आज भी चल रहा है वो। 4 इयर्स तो मैंने यूज़ किया उसको, आज भी चल रहा है वो। सो ब्रांडेड एक्चुअली सस्ता होता है, सो ऑलवेज वैल्यू द Things. क्वालिटी, द थिंग्स। वहाँ पे आप लोग ब्रांड को क्वालिटी, इसके लिए मैंने आपको कल भी पूछा था कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है, क्योंकि आपकी फेवरेट कार बताएगी कि आप लोग कौन से लेवल पे हैं। सॉरी टू से दिस हाँ। मेरे क्लास में एक बंदा आता है जो कि मिस सना चली गई है, शोएब जानते हैं? शोएब, आवाज नहीं चल रहा है शोएब का। तो मैंने आज उसको सुबह में यही क्वेश्चन पूछा कि कौन सा फेवरेट कार है। साथ ने फेवरेट कार कौन सा बोला था आज अपना? स्विफ्ट बोला बंदे ने मुझे। मैं आप लोगों को कल बोल नहीं पाया, सॉरी टू से दिस, उसके बारे में कंप्लीट नहीं किया था। मैं कंप्लीट करके लेक्चर एंड करते हम लोग। मैं कल आप लोगों को कार का क्वेश्चन इसके लिए पूछा क्योंकि अगर आप लोग कभी फ्यूचर में शादी करने के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए आपने, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग को शादी करते कैसे, क्योंकि मेरी खुद की नहीं हुई है। मैं खाली आपको बता रहा हूँ कि इसको बोलते हैं टैलेंट। आप वहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लड़का जाता है, जाके सेड़ कैसे बने और लड़की की बहन वहाँ पे पूछती खाना वाना आता है, खाना आता है, झाड़ू बर्तन आते हैं। अरे आप लोग काम वाली बाई लाने के लिए गए कि क्या करने के लिए गए? आई गेटिंग द पॉइंट्स? आप समझ रहे हैं कि मेरी पॉइंट को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, दिमाग। वहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं लड़की से, आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो लड़के से? आप जाके बोल रहे हैं व्हाट्स योर फेवरेट कलर, ओ माय गॉड ब्लैक, ब्लैक इज माय फेवरेट मम्मी मेरे को इससे शादी करनी, ब्लैक इज हर फेवरेट। अबे तेरी तो फेवरेट कलर से शादी करेगा? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो कल यहाँ पे जो बंदे लोगों ने मुझे कुछ आंसर दिया था, तो मुझे बंदे ने सुबह में आंसर दिया स्विफ्ट। मेरे को स्विफ्ट कार पसंद है। स्विफ्ट कार का वैल्यू कितना है अभी, कितने की आती है स्विफ्ट कार? रमेश क्या रेट है स्विफ्ट कार Starting का? price 7 lakh. 7 लाख से क्या? 6-7 लाख 8 लाख 7, 6-7 ओके 6-7 लाख की कार आती है। जो बंदा 6-7 लाख के ड्रीम देख रहा है, क्या वो बंदा 10 करोड़ का ड्रीम को पार कर पाएगा क्या कभी जिंदगी में? नो। नो आई डोंट बिलीव सो। तो मैंने आप लोग को जो कल क्वेश्चन पूछा था व्हाट्स योर फेवरेट कार, इसके लिए पूछा था वो। अब आप लोग को मालूम है मैंने इसको स्क्रीन पे क्यों लगाया है? मजे के लिए लगाया है क्या? लोग इसको वॉलपेपर बोलते रहेंगे, बट मैं इसको वॉलपेपर नहीं बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ माई ड्रीम। दिख रहा है ये रेंज रोवर इवोक, 5 करोड़ का कार है ये। जब मैं 5 करोड़ का सपना देख रहा हूँ ना, कल के दिन मैं 10 करोड़ की कार खरीद सकता हूँ एटलीस्ट। 10 नहीं भी तो मैं एटलीस्ट इसका हाफ प्राइस का 2.5 करोड़ की तो कार खरीदूंगा। और अगर मैं अभी से अगर 7 लाख का अगर मैं ड्रीम लेके चलूंगा, तो डेफिनेटली हाथ गाड़ी खरीदूंगा फिर फ्यूचर में मैं। क्यों? जितना आप लोग का छोटा विजन रहेगा, उससे छोटा आप लोग का अचीवमेंट रहेगा। ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ में। सो ऑलवेज रिमेंबर, वैल्यू द क्वालिटी, not the quantity. Why? Because where there is a quantity, there is no quality, and where there is a quality, there is no quantity. सचिन तेंदुलकर क्वालिटेटिव प्लेयर है। पूरे वर्ल्ड में सचिन है क्या? बोले हर गली में सचिन है, बोले इंडिया के है क्या? नो। सचिन जैसा महान खिलाड़ी आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, शाहरुख खान, इतना ग्रेट एक्टर, इतना सक्सेसफुल एक्टर पूरे वर्ल्ड में है क्या? हर बोले हर गली में शाहरुख खान है? नो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड के हर फुटबॉल टीम के अंदर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? नो। नो। सो क्वालिटेटिव लोग आपको क्वांटिटी में नहीं मिलेंगे कभी भी। और अंडे लोग भरपूर है अपने पास में, चौक में जितने मांगता उतने अंडे सड़े हुए। यस नो? सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। आप लोगों को इतना समझ में आया रहेगा। बहुत लंबा हो गया आज फिलोसफी। बाय द वे फिलोसफी नहीं, प्रैक्टिकल चीज मैंने आप लोगों को आज बताया है। सो याद रखना, अंकल के साथ में जो हुआ आप लोग वो मत करना। सो ब्रांडेड चीज लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, विल सी यू टुमारो। अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चिंत रहना नहीं। ऑलराइट, चीरियो। थैंक यू सर। चीरियो। Amazing lecture, sir. Thank you so much. Thank you. Yeah, awesome, sir. Thank you so much. Cool.